So yeah, let's just quickly okay, पहले मैं एक introduction देता हूँ and then we'll start the basic video. ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या पीडीएफ की? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है. चलेगा, तू कर ले. फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन कर सकता है तू उसको. फैंटास्टिक इन द हाँ, उसको सिर्फ हाँ उसको यस 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 परफेक्ट एकदम एकदम फर्स्ट वाली स्लाइड पे ना. Awesome. Okay. Let me just give an introduction and then बात चालू करते हैं. ठीक है प्रवीण? Alright. Hey guys, welcome to the channel. Basically आज हम लोग question answer session कर रहे हैं with one of my students who is currently working on a game. He is currently studying game design and these are generally the kind of questions that designers have. So I thought why not document it so that I'll be having more such sessions and we'll be covering a lot of questions so that if in case somebody has similar questions or they want to follow up on more stuff in the comments, then everyone gets access to this information. So I thought it would be a good idea to record something like this and put it so that everyone benefits from it. So hey Praveen, nice to have you on the channel. Thank you, sir. Why? Hello Praveen. Oh yeah, also we have Ankit with us. Ankit is also a third year student who is studying design and building his career in design. So I thought why not also call him on board so that we have multiple perspectives, multiple questions, multiple opinions. Maybe Ankit has some other questions based on Praveen's questions. So usko bhi hum address karke we can do some more deliberation and figure out more things on the call. So yesterday we also have Ankit on the call. So yeah, good to have both of you on board. Tell us Praveen, tell us a little bit about your game and tell me a little bit about what you want to do today. तो रूम फ्रंट गेम एक हमारा प्रोजेक्ट है, 5 मेंबर्स का प्रोजेक्ट है और उसके अंदर मैं गेम डिजाइनर हूँ. तो रूम फ्रंट एक गेम है जो वेक्टर टाइप गेम है, लाइक एंडलेस रनर टाइप गेम है वो. एंड उसके अंदर हमने बहुत यूनिक मैकेनिक्स डाले एंड वो गेम के अंदर मेरे को कुछ डाउट्स है तो आज मैंने इस पीडीएफ में डाले हुए जो सर आज क्लियर करेंगे. Sorted. Okay, I guess let's just start from the questions there. ठीक है प्रवीण, तो questions से चालू कर. Let's start like talking about it as we go. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि what should the art style of roof run be? लाइक मेरे को खुद का एक यूनिक आर्ट स्टाइल क्रिएट करना है, तो मैं उसको कैसे डेवलप करूंगा, खुद का एक ओन आर्ट स्टाइल. Okay, so let me answer this in a couple of things. First off, like बहुत सारे व्यूअर्स को करंटली रूफ रन क्या गेम है पता नहीं है, तो तेरे पास जीडीडी है? कैन वी जस्ट शो देम द जीडीडी? थोड़ा कुछ बता सकते हैं रूफ रन के बारे में? हाँ, तब तक मैं बता दूं व्यूअर्स का. बेसिकली रूफ रन इज अ गेम वेयर a lot of the first year students are coming together to make a game, and there's artists, designers, project managers, and there's a developer as well. And this entire team is working together to make a parkour like 2D sides to the parkour like game. Something a little bit similar to Vector, if you've heard of that game. And they've designed, they're doing it all very professionally in a project management software like Jira. उसके ऊपर उन्होंने GDDs बनाए हैं. They have made level design documents. So that's why I thought it'll be a good idea to just go through what the GDD looks like. And उसके basis पे, let's try and understand how we can approach making the art style look unique, because there's already something like Vector out there. So now what can we do? तो पहले हम GDD देख लेते हैं, then we'll talk a little more about that. something like Awesome. Okay. हाँ सही है, चल जाएगा. ऊपर जो एडिटिंग है उसको व्यूइंग कर दे, टॉप राइट पे शेयर के नीचे दिख रहा है, टॉप राइट या राइट साइड पे. एक नहीं एकदम राइट मेरा राइट. हाँ, और यहाँ पे एडिटिंग को चेंज करके व्यूइंग कर दे, सो दैट इफ एक्सीडेंटली आई विल गेट मोर स्पेस. ओके, सो yeah, this is the GDD of Roof Run. You can see that right off the bat, we can see that the perspective is 2D side view. Theme है Cyber City Neon, Roof Top Runner, Tone Dark है, glitchy है, high tech है, Neon World Under Surveillance kind of theme है. So let's think about how we can go with the art style as we go through the document. तो अभी नीचे थोड़ा सा देखते हैं document में क्या क्या है. We can skip through some of this. We have the story which should give us some idea, but again, it's very glitchy. You've already mentioned neon light, so we'll skip through that. We know that is core on nature. Yeah, let's keep going lower.
ओके, थोड़ा ऊपर अब देखो, इसके आर्ट स्टाइल में ऑलरेडी आर्ट स्टाइल सेटअप है, राइट? एंड टू बी ऑनेस्ट, इट इज वेरी सिमिलर टू वेक्टर एक्सेप्ट फॉर द नियॉन लाइट्स एंड द पर्पल एक्सेंट एंड टील एक्सेंट्स. थोड़ा ऊपर रहो. Okay, और थोड़ा ऊपर रहो. I want to show them the actions that the player can do. Yeah, this. So if you look at the controls as well, the player can slide, the player can do vaults over objects, and they can also do ledge grabs. So what's important is कि हम लोग को आर्ट स्टाइल में ये भी सोचना पड़ेगा कि हम प्लेयर को अफोर्डेंस कैसे दिखा रहे हैं. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम चढ़ सकते हो तो हम कैसे दिखाएंगे प्लेयर इसके ऊपर चढ़ सकता है. दैट्स गोना बी समथिंग इंपॉर्टेंट. सो ये सारी चीजें दिमाग में रख के हम लोग आगे आर्ट स्टाइल डिजाइन करेंगे. ठीक है. सो नाउ गो डाउन अ लिटिल मोर. राइट, थोड़ा नीचे जाते रहे. या नीचे जाते रहे. Okay, now stay here for a bit. We also have something known as, we have some checkpoints apparently here. So we have something known as the grid entry. ये क्या है? Can you explain like ये 5 चीजें क्या है? Grid entry, signal breach, all of these things. तो स्टार्टिंग में लाइक वो हमारा पहले डिसाइड हुआ था कि लेवल्स बनाना है. देन टीम के सजेशन में हम लोग को चेक पॉइंट में बांट दिया था. तो उसके अंदर हमने उसको लाइक मैंने उसको नाम दे दिए. एक फर्स्ट में लाइक फर्स्ट जो लेवल होगा उसके अंदर लाइक ट्यूटोरियल टाइप लेवल होगा. सेकेंड लेवल में आप लोग उसके अंदर से थोड़े बड़े गैप्स एंड वाया ऑब्स्टिकल एक्सेट्रा चीजें लॉन्ग जंप ऐड करेंगे. एंड फिर उसके बाद जो हमारा गेम के अंदर मैकेनिक सिग्नल जोन वो आएगा उसके अंदर. एंड फिर उसके बाद जो फोर्थ वाला है उसके अंदर हम जो गेम को थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे. लाइक उसके अंदर हमारा एक डिस्टॉर्शन फीचर है वो डाल के. एंड फिफ्थ वाले में हमारी सारी चीजें आएगी उसके अंदर. लाइक जितने भी गेम के अंदर है वो फाइनल फिफ्थ वाले में आएगी. अच्छा, so basically this is difficulty levels तो बोल सकता है like as you progress. Yeah, different zones पे. ठीक है. Okay, ठीक है. We can also use colors for this, so let's keep that in mind as well. So we have 5 different zones. Then we have some interactable objects which are very important, like what we can vault over, what we can grab over, what we can slide under. And of course there's an enemy that is there an enemy that is chasing us? ऐसा कुछ है पीछे से आ रहा है जो अपने पीछे. Okay. Oh, great. So it's a personal game. So we have to also think about the enemy that's going to be running behind us, right? We also need a way to tell us whether it's close to us or far from us. And I'm sure नीचे जाते हुए कोई pickupable items है हमारे पास इसमें इस गेम में. नहीं था. And how about any interface? Interface पे कुछ चीजें कि खाली टाइमर है या कुछ है apparently ऐसा कुछ प्रोग्रेस कितना हो रहा है, कितना दूर भागे हैं. परशूट के लिए लाइक परशूट के पास एक एबिलिटी लाइक ही कैन स्टिक ए बॉल ऑन आवर प्लेयर एंड हमको कंटिन्यूस रन करना है. लाइक हमने बाय चांस हमने किसी ऑब्स्टिकल को कोलैप्स कर दिया तो हमारी स्पीड स्लो हो सकती है. वो हुआ तो वो बॉम्ब फट जाएगा एंड अपना जो प्लेयर है वो इंस्टेंटली मर जाएगा. तो हमको परफेक्ट उसको लाइक जंप करवाना है हमारे प्लेयर को. Oh, so basically तो वो जिंदा. Okay. Oh, so wait. तो बेसिकली एक स्टिकी बॉम्ब है एनिमी के पास पे. हाँ, जो हम पे वो फेंक सकता है. बट अगर हम पे चिपक गया तो हम निकालेंगे कैसे उसको? लाइक वो कंटिन्यूस मतलब वो तुम डॉज नहीं कर सकते हो स्टील बॉम्ब को. Okay. 50 सेकंड्स लाइक 15 या 10 सेकंड्स वो डिसाइड करना टाइमर परफेक्ट गेम के हिसाब से जब लेवल डिजाइन करेंगे तब. तो अभी के लिए तो हमने सोचा 10 सेकंड के लिए हमको कंटिन्यूस रन करना है. एंड अगर बाय चांस प्लेयर किसी ऑब्स्टिकल को कोलैप्स कर गया तो स्पीड स्लो होगी तो वो हट जाएगा. Okay, fair. समझ लिया. We can work with that mechanic. That works. Okay, keep going. नीचे थोड़ा यूनिक मैकेनिक है but that works actually. It's not a bad idea at all. नीचे जा. सही है. Okay. टाइम ट्रायल मोड है एंड देन बाकी. सो we're going with the basic mode. बेसिक मोड तो ये है ना कि लेवल का स्टार्ट है और लेवल का एंड है, खाली कवर करना है. ओके, तो हम लोग पहले उससे बनाएंगे. टाइम ट्रायल पे नहीं जा रहे अभी. करंटली प्योरली इस पे जा रहे कि लेवल स्ट्रक्चर्ड है, पहले से डिजाइंड है. ए टू बी जाना है और प्लेयर को एनिमी को अवॉइड करना है. ऑब्स्टिकल्स कवर करना है. जितना दूर इसका है उतना दूर रहकर खाली कवर करना है. सो यू डोंट हैव टू बेसिकली कोलाइड अ लॉट. ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट. इफ आई हैव टू मेक हैव यू मेड एनी ब्लॉक आउट ऑफ योर लेवल? तूने कोई ऐसा विजुअलाइजेशन किया है लेवल का, कैसे दिखता है लेवल? लाइक मैंने पेंट के ऊपर बनाया था एक बेसिक लेवल था एकदम स्टार्टिंग. चलेगा है अगर है तो देख लेते हैं.
So ज्यादा कुछ खास है ऐसे हो? doesn't matter. हम लोग खाली देखना एलिमेंट्स है क्या उसमें, अगर सारे एलिमेंट्स है तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. मैं पीछे लग रहा था. So it's good. Yeah, something like that works. ऐसा है कुछ. चलेगा. लाइक यहाँ से प्लेयर जाएगा, इस पे जंप करेगा, यहाँ से जंप करेगा, ऊपर जाएगा. यहाँ पे हमारा वॉल पे कुछ भी डाल सकते हैं. देन यहाँ से स्लाइड करके जंप इधर से इधर आएगा. यहाँ पे जंप करेगा, फिर नीचे जाएगा, यहाँ से जंप करेगा, फिर ऊपर से ऊपर, एंड फिर यहाँ पे चेक पॉइंट. Fair. बहुत सिंपल है. फॉर दोज हु डोंट नो, एसी यूनिट, सैटेलाइट, वाटर टैंक जो भी इसे मेंशन किया, नेट वॉल एंड जो भी है, ये ऑब्स्टिकल्स है. ऑब्स्टिकल के नाम आर्ट एसेट्स के लिए हैं, बट तुम इसको बेसिकली देख सकते हो कि देयर जस्ट प्लेटफॉर्म्स व्हिच यू कैन वॉल्ट ओवर और स्लाइड अंडर, है ना. अभी उतना ही है. Yeah. और फाइनली वो जो लास्ट वाला नेट वॉल है, नेट वॉल भी इज जस्ट अ वॉल्ट, राइट. इट्स नॉट अ वॉल्ट रन. वॉल्ट रन आई थिंक तेरे गेम में नहीं अब तक, है ना. वॉल्ट रन नहीं है. वॉल्ट रन नहीं है, लाइक रनिंग वॉल्ट है. हाँ नहीं सॉरी, मैं वॉल्ट रन बोल रहा हूँ, नॉट वॉल्ट रन. बेसिकली एक बड़ा दीवार लंबा समझ ले प्लेयर के हाइट से ऊपर, जिस पे प्लेयर भाग के ऊपर रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना अभी. सर नहीं. ओके ठीक है. तो बेसिकली अपने पास दो टाइप के मैकेनिक है, एक है स्लाइड और एक है जंप ओवर एंड ऑब्स्टिकल, बराबर. ओके ठीक है. सो नाउ हियर्स द थिंग विथ अ गेम लाइक दिस, there's something we talk about in level design. देखो, so do you know about signifiers and affordances? No. All right, then let me quickly show you what that is. Okay. One easy way I can do this is, let me share my screen. तेरा स्क्रीन शेयर चालू ही रख, खाली मेरे स्क्रीन शेयर पे आ रहा, फुल स्क्रीन में क्या था. ओके, स्विच करना पड़ेगा. हाँ रहा, दैट्स फनी. स्विच करके आ रहा है, आएगा, इशू नहीं है. अरे अरे पोस्ट कर रहा है. ठीक है. चल ये आई and let's also talk about leading lines in Neo Design. Because your game is completely linear and constantly moving in one direction, ठीक है, we don't need to worry about leading lines that much. Because leading lines help तब करता है जब तुमको कैमरा से ओरिएंट करना सीखना है, या तुमको प्लेयर को बताना है कौन सी तरफ जाना है. बट तेरे गेम में ऑलरेडी प्लेयर एक तरफ जा रहा है, राइट. ही इज कॉन्स्टेंटली रनिंग, राइट. आई थिंक तेरे गेम में यू कांट स्लो डाउन मैन्युअली, राइट. पूरा राइट लेफ्ट टू राइट ऑटो रनर है. या Okay, so in that case we need to figure out signifiers. Now what are signifiers? Basically signifiers are a way to like show to your player that something is possible. ठीक है. They're basically, I mean technically signifiers is like helping you figure out some kind of direction, but affordances I would say is more the right word for this. ठीक है. Affordance basically tells you that something is possible. For example, you can grab onto something, or you can interact with something, or you can pick up some item. वो इतना subtly बताता है गेम, उससे तुमको समझ आता है कि तुम कुछ चीज़ कर सकते हो. Signifier is more like it's giving you a direct cue that something can be done. For example, if you know a game which is called Mirror's Edge, तूने सुना है? सुना. Mirror's Edge. तो Mirror's Edge में हर चीज़ जो लाल होती है वो स्ट्रेट अप बताता है कि तुम्हें कुछ करना है वहाँ पे. It is signifying that is where you need to go, and that is what you need to use to do the parkour. So basically red leads you in this game. In Skyrim and Far Cry, there are places which basically tell you what to do, even with just colors. This one? yellow paints. Exactly, yellow paints. Exactly. That's the thing. So it depends from game to game how they do it. Horizon Zero Dawn has it with like little lights. So तेरे गेम में हम लोग को ये फिगर आउट कर रहा है कि जब हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो हम प्लेयर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं. नाउ थिंक अबाउट हाउ द होल स्क्रीन विल लुक लाइक. You definitely have some sort of UI for pause. I mean, it's a mobile game, right? At the end of the day. का डिजाइन है मेरे पास. है तेरे पास, दिखा सकते हैं? हाँ. Okay, दिखा दे. That will help a lot for me to set this up as well. तेरा स्क्रीनशॉट बंद मत कर, चालू ही रहेंगे. Okay.
हाँ दिस वर्क्स मेरे को इसी पे जाना था. सो बेसिकली जो हैमबर्गर मेन्यू दैट इज व्हाट पॉज इज एज वेल, राइट. उसके अंदर जो सेटिंग्स है म्यूजिक, ये तरह यूएक्स फ्लो अच्छा है. सेटिंग्स है तो अभी तो वॉल्यूम कंट्रोल्स दिया हुआ है. Then you have when you are in the main menu, you can start the game or go to checkpoints and select a checkpoint to go into. Otherwise, when the person will stick a bomb on you, you will have a timer that will start. Fair, बहुत सही है, सिंपल है. ठीक है, मैं तेको बोलता हूँ क्या, देखो टाइमर की भी जरूरत नहीं है बॉम्ब के साथ. And I'll tell you how. You can folk with it with the animation. Now let's look at how that's possible. First off, तेरे गेम में आर्ट स्टाइल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, हम लोग पहले वो फिगर आउट करते हैं. ठीक है, what is the responsibility of the art style? First is mood. Okay. Mood and feel. Basically, the mood is going to be something like, I will just combine these two into one because that's easier. You can think about it like this. What should it feel like? First off, you said it's fast-paced. Secondly, it should probably feel criminal because you're running from something, right? Are you running for something or are you running from something is a big question here. अगर तू कुछ चोरी करके भाग रहा है तो प्रॉब्लम क्रिमिनल है. अगर तू कोई कोई अर्जेंसी से कोई चीज को चेज कर रहा है तो प्रॉब्लम तो कुछ हीरोइक कर रहा है. तो इन दिस केस वी आर रनिंग फ्रॉम समथिंग, देयर इज अ परस्यूट हैपनिंग, सो वी डेफिनेटली probably हियर अ क्रिमिनल. दैट्स द वाइब दैट द थीम इज सेटिंग. सो वी वांट टू कीप दिस मूड इन आवर लुक एंड फील एज वेल, राइट. Finally, thirdly, this is not a confrontational game. It's not where we fight the enemy, we run from them. So we also have some sort of a sneaky behavior here, or it's more of a stealth-like behavior here. Even though we're in a pursuit, the whole point is that it's a very nighttime pursuit. It's not a daytime pursuit, right? तेरा पूरा game I think nighttime पे है, right? हाँ, exactly. तो हम लोग को वो मूड बनाए रखना है. एग्जैक्टली. सो हम लोग को वो मूड बनाए रखना है, ठीक है, उस मूड को टच नहीं करना है. दूसरी चीज ये है कि वी वांट द प्लेयर टू नो व्हाट दे कैन डू. सो क्लैरिटी इज सुपर इंपॉर्टेंट, विच इज वेयर वी नीड टू एड्रेस एवरी सिंगल एलिमेंट दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू द प्लेयर. पॉज मेन्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेट्स जस्ट थ्रो देम इन राइट नाउ बिकॉज इट्स इजी टू डू दैट. पॉज इंपॉर्टेंट है, जंपेबल इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स स्लाइडेबल इंपॉर्टेंट है. नाउ ये जंपेबल एंड स्लाइडेबल दोनों जो है वो ऑब्स्टिकल्स है. सो वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट क्या चीज बैकग्राउंड है एंड क्या चीज फोरग्राउंड है, ठीक है. तो क्वेश्चन है कि प्लेयर कैसे डिटरमाइन करेगा फोरग्राउंड क्या बैकग्राउंड क्या है एंड क्या चीज ओवरले है. दिस कैन बी यूज्ड फॉर पैरालैक्स. ओके, सो वी नीड टू फर्स्ट थिंक अबाउट दिस थिंग. Then we have some kind of a post effects which is going to give us some status indications like how close is the enemy. What I mean by this is, imagine अगर तेरा प्लेयर यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, ये तेरा प्लेयर है, ये भाग रहा है, ओके, ये प्लेटफॉर्म है और एनिमी यहाँ तक आ चुका है, ठीक है. एनिमी ऑलमोस्ट तेरे को close in कर रहा है because you let's say collided with an obstacle and then you sort of like are continuing from there, but he came close because that first hit. Now the enemy is close to you. तो तेरे को फीलिंग क्या आनी चाहिए? Probably ये साइड पे you want some kind of an effects that grows onto you. तो समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Or maybe an overlay here that shows that oh you're about to get caught. But that feeling of almost being caught needs to become something that the player feels. ताकि उसको फील हो कि भाई मुझे भागना है, ठीक है. सो वी नीड समथिंग लाइक दैट टू हैपन. ऑलराइट, सो दैट्स अनदर रीजन फॉर योर आर्ट स्टाइल टू like your art style is responsible for that. Okay, we need to consider that in our planning itself. And finally, what else are we missing? We talked about other statuses like, for example, the time bomb, right? Now the time bomb, this can be directly integrated with an animation. What I mean is, imagine तेरा जब प्लेयर भाग रहा है तो कॉन्स्टेंटली अपना हाथ झटका रहा है, समझ रहा है, हाथ झटका रहा है और हाथ झटकाते समय उसके हाथ के ऊपर एक बीपिंग दिख रहा है. वो बीपिंग जितना फास्ट रहेगा प्लेयर को पता है वो उतना क्लोज है फटने के लिए. if the animation can go through, which means if he can move his hand enough seconds, let's say you said 15 seconds, अगर 15 सेकंड अपना हाथ झटकाता है तो हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि टाइम बॉम्ब गिर जाता है और पीछे रोल होता है और एनिमी को लग जाता है, एनिमी को थोड़ा पीछे करता है. दैट्स अ मैकेनिक चेंज. You can think about that, but the point is that we can show something that's sensible. कि उतना टाइम उसने हाथ झटका के स्टिकी बॉम्ब निकल गया, तो समझ रहा है, समझा. तो यहाँ पे फिर तेरे को टाइमर दिखाने की जरूरत नहीं है. बिकॉज वाई? बिकॉज नाउ यू विल फोर्स द प्लेयर टू बी अ लिटिल बिट अटेंटिव ऑफ दैट साउंड एज वेल एज लुकिंग एट दैट
at that visual indicator. Now, this is still user information, right? It is still a user interface. It's still UI, and the kind of user experience it's creating is it's making the player immersed. Now, in this case, I think this goes into like a kind of a diegetic UI where it is a part of the world, right? So that works for us. We can just go with that. अगर जो टाइमर रहेगा तो टाइमर प्रॉब्ली वो फील नहीं क्रिएट करेगा जो ये करेगा. और दूसरी बात ये है कि तेरा आंख पूरे टाइम किस पे रहता है? प्लेयर पे, गेम में, राइट? प्लेयर पे एंड राइट इन फ्रंट ऑफ इट ऑन द ऑब्स्टिकल. नाउ व्हाट्स गोना हैपन इफ यू टेक ऑफ योर आईज एंड लुक एट द टाइमर एट द टॉप? तेरा प्लेयर कोलाइड होएगा. So that can create a bad experience for the players. That's why another reason why I thought let the status be on the player itself. अगर बॉम्ब है, बॉम्ब के ब्लिंकिंग को ही तो एनिमेशन बना सकता है. एंड दिखाने के लिए, इसका रीजनिंग देने के लिए कि वो कैसे बॉम्ब निकल गया, तो दिखा सकते हैं कि वो हाथ झटक रहा था, 15 सेकंड झटकने के बाद में वो इतना लूज होकर गिर रहा है. तो वो सेंसिबल रहेगा प्लेयर के लिए. एज लॉन्ग एज इट्स नॉट ब्रेकिंग द प्लेयर्स परसेप्शन एंड मेकिंग देम क्वेश्चन अरे ये क्या था, इट्स फाइन. तो समझ रहा है? तो this is all technically part of your planning the experience using the art of your game. Okay, now this overall covers the core parts of your game. Now the question is, what else is important? For clarity, we don't just want colors to show for jumpable and slidable. उसके लिए तो नियॉन कलर्स यूज कर सकता है कि ऑरेंज जो भी आप भी लाइट रहेगा तो उस पर जंप कर सकता है, ठीक है? बट वी नीड टू थिंक अबाउट सम मोर स्टफ. ऑलराइट. One of the core things that you can think about is that anything which has a very sharp edge or anything which has a slightly edge that's coming out is probably a grabbable. You need to think about a consistent visual indicator that tells your players what they need to do even when the object changes. For example, तूने मेरे को बोला कि AC का डब्बा है, right? तो समझ नहीं, ये AC का डब्बा यहाँ पे है ऐसा, ठीक है, ये स्टिकर के साथ में अपने. और दूसरा तूने क्या बोला था, एक और चीज़ थी, टैंक. ठीक है, पानी का टंकी इधर, ठीक है. लेट्स से इधर एक पानी का टंकी है. ड्राइंग इग्नोर करना भाई, आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं. बढ़िया. लेट्स से यहाँ पे वाटर टैंक है, ठीक है, ऐसा कुछ. नाउ हाउ विल यू टेल द प्लेयर दैट दे कैन जंप ओवर बोथ ऑफ दीज थिंग्स एंड दे कैन वॉल्ट ओवर बोथ ऑफ दीज थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसके ऊपर एक बीच में ऐसा रहेगा ना तो मैं सोचूंगा नहीं कि ये वॉल्टेबल है, बिकॉज ये बीच में आ रहेगा प्लेयर की वॉल्टिंग मेरे खुद के सेंसिबिलिटी में. तो इफ आई वांट टू मेक अ वाटर टैंक, I would have to think of a tank where either the tank is something like this, where the opening is right here at the start itself, so I can show that यहाँ पे हाथ रखने की जगह है, यहाँ पे प्लेयर हाथ रख के जा सकता है, ठीक है. और ये सब कुछ फिर एग्जैक्ट सेम हाइट पे रखने पड़ेंगे ताकि प्लेयर को रिकग्नाइज हो जाए. दूसरी चीज़, अगर ये बहुत वाइड हो जाएगा तो तेरे को लगेगा कि तू इसके ऊपर वॉल्ट कर सकता है, नहीं, तेरे को लगेगा खाली जंप करना है इसके ऊपर, राइट? बट अभी द थिंग इज कि इफ योर प्लेयर इज ऑफ दिस हाइट, ओके, यहाँ पे प्रोपोर्शन बहुत मैटर करेगा, ट्रस्ट मी. अगर प्लेयर का हाइट इतना है तो मेरे को बता, इतने बड़े ऑब्स्टिकल के ऊपर तो जंप करेगा कि तो वॉल्ट करेगा? Void. पक्का है? What do you feel? How does it feel? नहीं, jump करके like उसको. You feel like the jump will be enough, like you can jump that high or in a pursuit? You have to like. So do you think you will vault over it? Yeah. Okay, but what's the issue? The issue becomes that this is too long, right? Can you actually vault over this entire thing? So that's the reason why proportions will matter a lot. Okay, so think about your body proportions and think about what is an actual clearable obstacle, because the reality is that the biggest thing in your game is going to be what feels like it can be cleared. If this can be cleared, now the player will actually try to vault over it. Okay, okay. The other thing is you can give some kind of affordance to it, but with a rounded corner for things that you can, let's say, jump over. You need to think about what fits your art style, which doesn't look odd in your game, but is consistent for these obstacles. Something that's key code enough for your player to say, oh, I can jump over this because it has rounded corners. देखना भाई, rounded corners इसलिए मैं कूद सकता हूँ. That kind of mentality is set in automatic. तुमको बताना नहीं है, वो player को recognize करना चाहिए. दूसरी चीज़ तुम दे सकते हो is like small yellow lights, or you can even show कि you can also use lighting to showcase how stuff works. For example, हर jumpable obstacle के बाजू में तो एक street light डाल सकता है. Yeah. ठीक है. This will do two things. Not only will it light the environment and keep lighting consistent, it will also force you to put a decent amount of obstacles which keeps the action going. So it's not like the player is constantly just running. Yeah, I mean, you will have eventually एक often तुम्हारा आने वाला है, right, obstacle. तो lighting भी कर देगा and तुम्हारे obstacle jumpable है वो भी बता देगा.
तो इंटरेक्टेबल कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है ऐसा, तो लाइट लगा दो सामने. प्लेयर को इमीडिएटली समझेगा नहीं, बट ऑटोमेटिकली व्हेन वो बहुत खेलेगा ये एक सबकॉन्शियस पार्ट बनाएगा कि यार लाइट दिखा मतलब जंप आने वाला है. क्यों? क्लासिकल कंडीशनिंग. और वाज इट ऑपरेंट? नहीं, इट्स क्लासिकल. यू गेट द आइडिया? यार तो इट्स नॉट नेसेसरी. तो शेप फिर शार्प रख सकता है. तूने खाली सटली स्ट्रीट लाइट ला, या नीचे वो लाइट होता है ना, नीचे वाले हैलोजन लाइट काइंड ऑफ ऐसा 2D पेंटेड, तो वैसे भी तू लाइट्स पेंट कर सकता है. एंड उससे प्लेयर को लगेगा कि वाओ, जब भी लाइट आ रहा है ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी को पता है कूदेगा. उसको शायद से वो लॉजिक समझेगा नहीं, बट उसको ये पता रहेगा कि सबकॉन्शियसली इफ आई सी अ लाइट देयर मस्ट बी एन ऑब्स्टेकल समवेयर. तो नेक्स्ट टाइम अगर लाइट रखेगा और ये हटा देगा ना, उसको अजीब लगेगा. उसको लगेगा ऐसे कैसा कुछ नहीं है. उसको समझेगा नहीं क्यों अजीब लग रहा है, बट कुछ तो उसको ऑफ लगेगा. Because subconsciously he's trained that whenever you see light, you jump. All right. So you need to think about what becomes a signifier in your game which fits your art style. This should also help with clarity, okay, and color. So now the thing is, you want neon. Neon can be a part of what is a question. If you have a cyberpunk city, if it's a very cyberpunk kind of city, then you can think about the foreground. Sure, foreground is generally black and such. The thing is, अगर तू अपने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा डिटेल दे देगा तो प्लेयर के आंख बहुत वॉन्डर करेंगे. दे आर गोना लुक अराउंड द एनवायरमेंट, दे आर गोना लुक ऑन द एजेस, दे आर गोना लुक एट द बॉटम, दे आर गोना लुक एट द डिटेल्स. यस, नियॉन बहुत सही लगेगा. फॉर एग्जांपल अगर ये बिल्डिंग है, समझ यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर भाग रहा है तो बिल्डिंग के ऊपर से कूद कर रहा है, बिल्डिंग के ऊपर लाइट्स है, उसके पास साइन बोर्ड है यहाँ पे साइड में, वो जो जापानीज ऐसे साइन बोर्ड नहीं होते यहाँ पे, कुछ तो यहाँ पे साइन है ऐसा जापानीज में कुछ लिखा हुआ है ऐसा कुछ तो भी, ठीक है, जो भी सिंबल्स है. यहाँ पे प्लेयर का अटेंशन अगर ज़्यादा चल जाएगा तो वो रन नहीं कर पाएगा एंड ही विल बेसिकली ब्लेम द एनवायरमेंट फॉर बीइंग टू डिस्ट्रैक्टिंग. सो अ लिटिल बिट ऑफ इट इज फाइन, और if the detailing of it is not as high resolution as the player, that's also fine. But the highest detail and the highest focus should always be on the player and the obstacles. At the end of the day, that's your core gameplay. Nothing should pull away from that. So अगर तू नियॉन यूज नहीं कर पा रहा है प्लेयर में और ऑब्स्टिकल्स में, ठीक है, तो उसको अगर तू एनवायरमेंट यूज करे तो ऐसा यूज करना कि वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं हो रहा है. समझ रहे? तो तेरा बैकग्राउंड शुड बी लाइक अ डल कलर, something like a dark blue midnight sky. You can have a nice moon with a nice glow and some clouds and some basic stars in the background, just to make it feel like a nice night city. This is for immersion, okay? इवन अगर लाइट्स भी रहेंगे तो भी ब्लर्ड अगर रहेगा. हाँ, एग्जैक्टली. इसके ना रेजोल्यूशन कम रहेगा तो चलेगा. तो अगर ये सब नियॉन लाइट्स भी है बट थोड़ा ब्लर्ड है, थोड़ा फेडेड है, थोड़ा सा अगर उतना ब्राइट नहीं है, यू कीप द कलर, कीप द ब्राइटनेस, बट डोंट गिव इट टू मच रेजोल्यूशन. प्लेयर शुड बी एबल टू फिगर आउट. हाँ, आर्ट है वो सिटी के बैकग्राउंड का. ओ नाइस, दिखा था आपकी हो गया. सही. फिर तो हम लोग देख के बता सकते हैं कैसा लग रहा है. देखिए इसको. That looks nice. That looks so funny. अच्छा, स्क्रीन शेयर है ना, ये वाला है. दिख रहा है आपको? दिख रहा है. ये एंड एक ये वाला है. ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो रहा था तो इस पे हमने एग्री किया था. एक काम कर, स्क्रीन शेयर कर वापस एंड ऑडियो स्क्रीन मत शेयर मत कर. एक्चुअली वेट रुक जाओ. हाँ, अभी ठीक है, अभी सुनिए. हाँ, तो अभी मेरे को इसे स्विच करके दिखा दूसरा वाला कलर, एकदम परफेक्ट है. हाँ, चेंज कर. ओके, परफेक्ट. देख, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन इट? आई मीन अगर हुआ मैं बस अंकित को ओपिनियंस पूछा. वो जो पहले वाला था वो लाइक कौन सा नाम था आपका? हेलो. हाँ, ये वाला लाइक डिसीजन में पता चला कि अगर लाइट बैकग्राउंड है तो फेडेड रहता है वो, और वो वाला भी अच्छा था. बट थिंक अगर तू डार्क ब्लू वाला करेगा देन जो फोरग्राउंड है तेरा वो लाइक ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए एंड लाइक ग्लोई इफेक्ट रहता है, राइट? नियॉन ही कहते रहा, राइट? सो वो लाइक ऐसा लाइट्स उस पर दिखने चाहिए. सो लाइक वो डिफर करने के लिए तेरे कलर पैलेट्स उसके सिमेट्री होने चाहिए. अभी तेरा ब्लू है तो देन ग्रीन वाला या फिर रेड्स वाले तेरे फोरग्राउंड पे होना चाहिए. दैट्स हाउ लाइक वो कलर थे इसमें तो वो हो सकता है तेरा. बट या एंड जो एसेट था
हमारा टैंक का वो कुछ ऐसा है लाइक उसको मैंने एक सेकंड, थोड़ा ऊपर रहो, थोड़ा ऊपर रहो, थोड़ा सा ऊपर रहो, थोड़ा सा बस थोड़ा ऊपर और थोड़ा बस यहाँ पे ये एक और एक से ये वेक्टर का है राइट या इसका तो पूरा तो अगर तू वेक्टर को देखेगा उन्होंने पूरा का पूरा फोरग्राउंड खाली ब्लैक में रखा है. डू यू गाइस वांट टू डू समथिंग सिमिलर? लाइक पूरा एकदम ऐसा लाइक सिल्वर टाइप का थोड़ा सा कैरेक्टर्स के फेस दिखाने, ऐसा दिखने का कैरेक्टर के फेसेस वगैरह दिखाने हैं. नहीं फेसिस में सिमिलरिटी है पूरा ब्लैक ही होगा तो ऐसा है कुछ मेरे पास कैरेक्टर ये एनिमेशन कैरेक्टर का लाइक ऐसा होगा कैरेक्टर. नाइस. ये हमारा वाटर टैंक है जिसके ऊपर से जिम करने वाले थे. ये ऐसा होगा कुछ. हाँ, तूने कोई सीन में सारी चीजें एक साथ प्लेस करके देखा है मॉकअप नीचे? नहीं लाइक अच्छा, अभी तक वो डेवलपर का खराब हो गया था लैपटॉप का इश्यू तो इंटीग्रेशन अभी तक बचा है. ओके. नहीं, फोटोशॉप पे भी अगर तो आर्टिस्ट को बोलता है इसे इतने सारे एसेट्स बनाए, क्या उसने फोटोशॉप या एक इमेज बेसिकली बना के डाल के देखे कैसे लग रहा है सब कुछ एक साथ? नहीं. ओके, टेल हिम टू ट्राई दैट. मेन्यू डिजाइन अच्छे लग रहे तो गाइस नीचे जा थोड़ा सा और ये UI ओके. जो मैंने बनाया था ना उसका टीजर साइट वाला. ओके, माय क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू डू व्हाट यू आर डूइंग हियर? खोल एक्सेन इसको. तेरा पूरा बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर्ड है, विल दैट बी ओके विथ यू अगर तू ऊपर थोड़ा सा कलर दे रहा है? पॉइंट इज तू बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड को डिफरेंशिएट कैसे करेगा? वेक्टर ने कलर से किया है, उन्होंने फोरग्राउंड को ब्लैक कर दिया और बैकग्राउंड को पूरा ब्राइट कलर्स यूज किया है ताकि कॉन्ट्रास्ट बहुत क्लियर बने. तेरे गेम में कॉन्ट्रास्ट कैसे बनेगा? अगर तू बैकग्राउंड को ब्लर करता है तो फोरग्राउंड पे कोई भी कलर्स यूज कर चलेगा क्योंकि बैकग्राउंड पूरा ब्लर्ड है एंड लोग देखने वाले क्लैरिटी से. जो सामने है वो बहुत क्लियरली दिखाई देगा. भले ही कलर्स में थोड़ा सा फाइट आएगा, दैट इज लाइक वेर यू नीड टू अप्लाई कलर थ्योरी ऑफ कोर्स, but a lot of the clarity will become clear based on like what is blurred and what is very crisp and clear. So whatever is crisp and clear can become your foreground and that will get the attention to detail as well. So तेरा अगर character में let's say अभी तो silhouettes बोल रहा है but like even if there's like a bandana or there's eyes or there's expressions, then those things will become clear. Even the glowing bomb will become very clear on the characters that are in the foreground. And the background will of course be in parallax. तो जो multiple layers है वो तो transition होंगे but वो blurred रह सकता है ताकि फोकस रहे प्लेयर के ऊपर. तो आर्ट स्टाइल के हिसाब से द थिंग इज यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू मेक योर आर्ट स्टाइल. ऑल दैट इज गोइंग टू मैटर इज दैट वॉट एवर लेयर्स यू थिंक, वॉट इज द बैकग्राउंड, वॉट इज द फोरग्राउंड, वॉट इज एन ओवरले, वॉट इज द UI एंड वॉट आर द डायजेटिक इंटरफेस पार्ट्स दैट यू नीड एंड वॉट आर सिग्निफायर्स एंड अफोर्डनेसेस. हर एक के लिए कॉन्ट्रास्ट प्लान कर ले. ठीक है कि ये चीज़ को हम साइज से दिखाएंगे, ये चीज़ को हम शेप से दिखाएंगे, इस चीज़ को हम इस कलर से दिखाएंगे, ये चीज़ को हम ब्राइटेस्ट कलर्स से दिखाएंगे. जो भी ब्राइटेस्ट कलर्स रहेंगे वो पिकअपेबल्स रहेंगे, बट ग्रीन रहेगा तो हेल्थ रहेगा, रेड रहेगा तो ग्रेनेड रहेगा. बेसिकली यू नीड टू मेक योर रूल्स. ओके, सो विजुअल रूल्स बना कि बैकग्राउंड जो रहेगा वो ब्लर्ड रहेगा या बैकग्राउंड रहेगा वो कलर रहेगा, फोरग्राउंड जो रहेगा वो क्रिस्प रहेगा या फोरग्राउंड जो रहेगा वो पूरा ब्लैक रहेगा जैसे कि वेक्टर ने किया है. तो यू कैन रिव्यू मल्टीपल साइट्स फॉर गेम्स, अंडरस्टैंड व्हाट रूल्स दे हैव एंड व्हाई दे हैव and think about what kind of rules you want to make. So there is a very interesting thing I can show you here. एक से मेरे screen share पे आना, ठीक है? Because the whole point is how you can make your art style, right? There is a Frozen Byte document. Now Frozen Byte का जो document है I've shared with you guys before. And there are other ways to look at it. This is the same company that made 9 Parchments. They are known for their art style and their colors and their beautiful level design. And they talk a lot about contrast and how contrast is very important in bringing attention to detail to the right areas of interest in your level, right? So wherever you think the people need to focus, how do you use contrast to basically make people look at that? And the question is in the values ka contrast or detailing ka contrast or shape ka contrast. Sometimes it's even it can be pretty much anything, even like density contrast, like where is everything pulled together, where is everything scattered across.
I think they have talked a lot more about it. नहीं, this is not in the composition. But है, इनका contrast का भी information यहाँ पे है. Let's see. I think it's fair रखा है, हमने contrast रखा है. If you read about it, देखो हमने basically इनका point क्या है, contrast का. So देखो तेरे गेम के लिए प्लान करना पड़ेगा तो contrast को ये कैसे कर रहा है, define कैसे कर रहा है, if that makes sense. तो समझना. तो ये जो लेयर्स हमने जो बात की है बेसिकली, जैसे कि बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, ओवरले है. ओवरले तेरे गेम में शायद नहीं भी हो. ओवरले पता है क्या है? पैरेलैक्स. यस, खाली सामने के पैरेलैक्स, लाइक लिटरली इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, इन फ्रंट ऑफ द प्लेयर. It's purely for visual. In fact, that can be like big blobs of something that's just blurred and it just like comes and goes. But in a game like yours where it's a fast-paced game which requires reaction time, that might become a distraction and might confuse the player. तो experiment कर सकता है उसको नीचे डाल के देखने के लिए, खाली प्लेयर को एक डेप्थ फील कराने के लिए. बट अगर वो तेरे ऑब्स्टिकल्स को कवर कर रहा है फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, या प्लेयर को कवर कर रहा है फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो उतने हाइट के नहीं रखे, या फिर टॉप पे थोड़े अगर तेरे को लेट्स से टेलीफोन वायर्स रखने हैं, समझ में क्या बोल रहा हूँ, छोटे टेलीफोन वायर्स रख सकता है, छोटे छोटे चीज़ें ऐसे पे, या चिड़िया रख सकता है कि चिड़िया उड़ के गई सामने से, फोरग्राउंड पे, नॉट इन द बैकग्राउंड. वैसे चीज़ें तो ट्राई कर सकता है टू एड डेप्थ टू योर सीन दैट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द प्लेयर. सो बेसिकली मेक अ लिस्ट ऑफ विजुअल रूल्स फॉर योर गेम दैट्स गोइंग टू डिफाइन द आर्ट स्टाइल ऑफ द गेम. Like the foreground will always be sharp, the background will be blurred, or the foreground will only be black and the background will always be in bright colors. You need to think about what kind of rules you want to make, and the rules should work with each other to make sure that every single rule, the reason they exist, do not like cancel out another thing that you have in your rules. So they should complement each other. तो समझ रहे हैं? जैसा कि हमने रूल बनाया कि अगर हम लोग को दिखाना है कि कोई चीज़ इंटरेक्टिव है या ऑब्स्टिकल इंटरेक्टिव है तो हम लाइट लगा सकते हैं, या इस पे एक नियॉन लाइट लगा सकते हैं, या मैं वाइट आउटलाइन भी दे सकता हूँ. दैट्स ऑल्सो फाइन, मैं वाइट आउटलाइन दिखा सकता हूँ. या तो पता है एक और चीज़ कर सकते हैं, जब भी प्लेयर सामने आने वाला है एक रनिंग ऑब्स्टिकल को, वी कैन शो दैट ही इज रीचिंग फॉर इट. थोड़ा सा उसके हिप में आगे फॉरवर्ड बेंड आ रहेगा तो ऐसा दिखेगा कि ही इज रेडी टू वॉल्ट. टेक्निकली वो पार्कोर के साथ एकदम परफेक्ट नहीं रहेगा बिकॉज रिएक्शन टाइम कम मिलेगा, बट यू गेट द आइडिया. यू कैन, फॉर एग्जाम्पल, तूने बहुत सारे ऐसे गेम्स देखे रहेंगे जहाँ पे जब प्लेयर चल रहा है, अगर लेफ्ट साइड में फोन पड़ा है जिसका तू इंटरेक्ट कर सकता है, तो ऑटोमेटिक उस तरह देखता है. तूने देखा है कभी गेम्स में, हिज फेस जस्ट शिफ्ट्स टू लेफ्ट एंड राइट लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स दैट ही कैन इंटरेक्ट विद. अगर कोई दरवाजा है, कोई गाड़ी इसमें एंटर करता है, ही विल लुकिंग एट इट. तो देखो समझता है कि यार ये प्लेयर इसको क्यों देख रहा है, तो फिर उसकी तरफ देखता है कि कुछ तो इसके साथ हो सकता है. तो इंटरेक्टिव्स तेरे गेम में तो क्लियर हो जाता है एट जस्ट लाइक प्लेइंग अ लिटिल बिट. This works more for like open world games where you can interact with like 100 different objects, but in your game it's very straightforward, so we don't need to worry about it. Honestly, affordability of just like being able to jump over it or vault over it because it's a parkour game is message enough to the player. अगर वो छाती के लेवल का है, कंसिस्टेंटली सेम हाइट का है, एंड बॉडी से मैक्स टू मैक्स बोलूंगा प्रॉब्ली लाइक 10-15% लंबा है, प्लेयर को लगेगा कि ठीक है वो लटक सकता है, जंप कर सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द प्लेयर. अगर प्लेयर बहुत स्लो चल रहा है तो ये भी बहुत लंबा लगेगा. अगर प्लेयर बहुत फास्ट जा रहा है तो प्लेयर को ये भी वॉल्टेबल लगेगा, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी. और इतना दूर तक जो भी लाइक थोड़ा सा ब्लिंक भी करेगा तो लाइक क्या करेगा, लाइक सामने अगर प्लेयर आया तो वो ऑब्स्टिकल थोड़ा सा लाइक ब्लिंक टाइप देगा स्प्लिट सेकंड, तो वो ऐसा लग सकता है कि यार गेम ग्लिच आउट हुआ है. तेरा फीचर कभी बग नहीं लगना चाहिए, है ना. और वो प्लेयर उससे कंफ्यूज होता है यार ये गायब कैसे हो गया. अगर प्लेयर हाई रिफ्लेक्सिव प्लेयर है तो फिर वो शायद से सोचेगा गायब क्यों हो गया. ब्लिंक इज नॉट अ गुड आइडिया देयर बिकॉज इट माइट फील लाइक समथिंग हैज बग्ड आउट, नॉट टू मच. बट जो कितना ऑफन ब्लिंक होने वाला है. ऑब्स्टिकल्स तो हर 3 सेकंड में तो एक आएगा एटलीस्ट. लाइक कितना स्लो होएगा वो रिएक्शन. अच्छा मेरे को सोच के बता प्रवीण, तेरे गेम में ऑब्स्टिकल कितना ऑफन आएगा. हाउ ऑफन विल अ प्लेयर एनकाउंटर ऑब्स्टिकल, उसका पर सेकंड एक्शंस पर सेकंड कितना रहेगा. बहुत ऑफन आएंगे ऑब्स्टिकल. एग्जैक्टली. तो एक सेकंड में तेरे हिसाब से कितना, या 5 सेकंड में कितने बार आएगा. 3 ऑब्स्टिकल्स, 4 ऑब्स्टिकल, एटलीस्ट 3. तो हर ऑब्स्टिकल अगर मैं 2 सेकंड का टाइम दूंगा तो देखो नहीं लगता बहुत टाइम लगेगा. सोचना ऑब्स्टिकल जब क्या 1 2 फिर एक और आएगा, फिर 1 फिर 2, तो लगता बहुत टाइम लगेगा. हाँ तो क्या लगता है फिर 1 सेकंड में कितना रहना चाहिए. एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 1, एंड एट मोस्ट कितने 3 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना. नहीं एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि एवरेज रिएक्शन टाइम हम लोग क्या पकड़ के चलते गेम डिजाइन में for at least like the majority of the public 300 milliseconds, और 300 milliseconds is 1/3 of 1 second. मतलब 1 सेकंड में तो 3 डाल सकता है मैक्स टू मैक्स. तो अब देखो समझना थे वो कैसे सोच के चल रहा है.
कि अगर ब्लिंक होएगा तो सोच एक सेकंड में 3 एंगल कितना ब्लिंकिंग चलते रहेगा सीन में. टिमटिम तारा गेम का नाम ही चेंज हो रहेगा कुछ तो. टिमटिम रूफ रन हो जाएगा. क्रेजी हो रहेगा. नहीं चाहिए वो. तो वो तो नहीं चाहिए हमको ऑब्वियसली. तो वी नीड टू थिंक अबाउट अ सिग्निफायर दैट लुक्स गुड टू अस. वैसा है. And I feel that in your game, shape enough would do something. But you know what is not helping? Then तेरे गेम में नियॉन जो तो चाहता था, जो फील के लिए चाहिए था, देखो वो मिस आउट हो रहा है. तो देखो सोचना पड़ेगा नियॉन कहाँ जाएगा फिर. नियॉन कैन गो इनटू स्टफ लाइक द ब्लिंकिंग बॉम्ब. It can go into like the eyes of the character and the bandana that you put, like the thing that you put up here. उसका था bandana. हाँ सब कैप हेलमेट जो भी है. उसके अलावा it can be in street lights. Or it can be in small indicators that are around the way for some reason. Or they can be in like small, signal towers. ऐसा small rods जो है जो लगे हैं जिन पे red light, green light कुछ भी आया हुआ है. ठीक है. Like players या फिर ऐसा कुछ आ रहा है. हाँ. Because तो high tech city कुछ बना रहा है तो it's fine. You can give your own logic for stuff. You can show it from telephone poles for some reason. Or you can show planes that are flying by. पीछे से. You can think about what you want to do. And you need to think about कि कितना नियॉन एक साथ स्क्रीन पे चाहिए at any point of time, और कितना मैक्सिमम होना चाहिए, कितना मिनिमम होना चाहिए, एंड कौन से कलर्स रहेंगे और वो कलर्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तूने बोला कि तेरे गेम में 5 लेवल्स के फील्ड्स है. लो विच इज 1 से हाईएस्ट विच इज 5. ओके. तो कलर प्रोग्रेशन क्या रहेगा और ये कलर कहाँ दिख के आएगा. सबसे बड़ी चीज, ये कलर दिख के कहाँ आएगा. क्या ये स्काई में दिख के आएगा कि जो प्रीवियस सबसे लो लेवल है उसका डार्क ब्लू है, बिकॉज स्काई इज द बिगेस्ट एसेट यू हैव इन द बैकग्राउंड. अगर तो स्काई को कलर देता है तो ट्रस्ट में पूरा फील क्रेजी हो सकता है. सोच, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू से यू कैन गो टू समथिंग लाइक ऑरेंज टू येलो टू एन ऑरेंज टू अ रेड, or you can do orange to red to purple, and this background color change itself could completely shift the mood of the game. तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. काफी. तो ये चीजें एक्सप्लोर करेंगे, बट ये चीज ये इंपॉर्टेंट है कि तू अपने विजुअल रूल्स लिख के उनको प्रोसेस कर रहा है. आई नो यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग. अगर तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो इस पे, पूरे इस पे. नहीं अभी जब मैं करूंगा मे भी तब आ सकते हैं मेरे को क्वेश्चन. ओके. बट इससे देखो थोड़ा क्लैरिटी मिला क्या. Did this help? Yeah. Okay. So let me go ahead and share this image with you just for reference. So if you forget, like maybe the image will, help remembering stuff. Wow, वो पूरा black and white में आया. देखो उसको डाउनलोड करके JPEG में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बट है, सब है उसमें. खाली देखो उसको डाउनलोड करके पेंट पे ये डालना पड़ेगा, बैकग्राउंड डालना पड़ेगा वाइट. ओके. तो ये एक चीज. अब तेरे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. बता तेरा दूसरा क्वेश्चन क्या था. हाउ डू आई बैलेंस ए गेम प्रॉपरली. उसकी लेवल को कैसे पता चले कि वो हार्ड हो गई या वो बहुत ज्यादा इजी हो गई. ये वाला अंकित ही आंसर करेगा. अंकित ये वाला तू ही आंसर करेगा. अगर तूने आंसर नहीं किया बहुत हार्ड है भाई. मैं कल से it's not hard. I can promise you it's not hard. Okay, I might get a lot of criticism on this point on YouTube. Public पे बहुत लोग बोलेंगे. मैं तुमको straight up बोल रहा हूँ, balancing the game is not hard. Okay, it just needs discipline. It needs attention to detail. You need to stick with it long enough, and you need to know what you're doing. You need to do the pre-production well enough. But yeah, तू पहले बता दे. Yeah, it is like अपना स्टार्ट कहाँ से करना है वो बहुत कंफ्यूज होता है. क्या चीज? स्टार्टिंग. हाँ, लाइक कैसे और कैसे है. Okay, ठीक है. But okay, let's talk about a game like this. Okay, first of all, let's talk about what defines the difficulty in the game. Trust me. Even if you were to do this for like a big MMORPG economy, if you were to do this for a Path of Exile like massive, multiplayer additive game, if you were to do it for combat systems, if you were to do it for pretty much anything else, even for a racing game, balancing is not that difficult if you pay attention to the core variables that are in play. So the question is, what first of all makes the game difficult? ये game difficult बन रहा कैसे? Let's address that. So let's write down what makes the game difficult. XML, where do I have Notion? Let me open up this thing. You can jump to my screen share and keep this open. Actually, yeah, jump to my screen share. Let me show you in another way how to look at this. मेरे स्क्रीन शेयर पे आ रहा मैं बता देता हूँ. आ गया तू? ये क्या हो गया इसको? हाँ देख गए. अबे
हाँ ठीक है, आगे ओके कुछ वाओ। एंड मेरे को बताना तेरे को दिख रहा है तो, दिख रहा है प्रवीण? हाँ, ओके सॉर्ट। सो सबसे पहले व्हाट मेक्स अ गेम डिफिकल्ट? टेल मी। आइडेंटिफाइंग ऑब्स्टिकल्स शुड नेवर बी, आइडेंटिफाइंग ऑब्स्टिकल्स शुड बी इजी। तेरे गेम में क्या चल रहा है प्लेयर को वो डिफिकल्टी नहीं लगना चाहिए। तेरा गेम रिएक्शन पे बेस्ड है, राइट? तेरे गेम में कोई पजल सॉल्विंग है क्या? कोई इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी है? नहीं। कोई कैलकुलेशन डिफिकल्टी है? नहीं। right. तो प्योरली रिएक्शन बेस्ड है। Yeah. ओके, व्हेन इज रिएक्शन वेरी इजी? When movement is What is easy reaction and what is difficult reaction? What makes reaction difficult? Can I say that patterns make my reaction easy and difficult? is it If I have a pattern in a rhythm or a rhythm, will that make my reaction easy? Like अगर मैं देखो तो हर एक ऑब्स्टिकल एग्जैक्टली 300 मिलीसेकंड पाएगा। 300 मिलीसेकंड स्पीड है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट स्पीड एज वेल, राइट? Pace of how fast they come. So tell me, if I have a slow one per second, but they come exactly per second, and every single time it's up down, jump slide, jump slide. Will that be easy? yeah. Okay. So now think about this. I increase the speed. Okay. So let's say difficulty 0, like difficulty level 0, is going to be pattern is consistent. Okay. Rhythm is also consistent. पता नहीं difference pattern और rhythm का के मैं clear करूँ? ठीक है। Okay. You can think about it this way. Oh, you know what? We'll make it in a Google Sheet, so you can see how I would have done this for my game. Okay. So I'll just do sheets dot. I think it's sheets dot new, right? Yeah. All right. Let's make this simple. So let's say rooftop run difficulty curve. Okay. I have something here for like level number, and this is just my drop down for something like let's say pattern, rhythm, and pace. And this often like also goes into like a beat chart of the game. Beat chart I'll explain again. I know मैंने कवर किया हुआ है पहले, इसलिए मैं अभी इस वीडियो में ये कवर नहीं कर रहा। मैं ट्यूटोरियल वीडियो तो बना देगा, मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। बट लेट्स से तूने 10 लेवल बना देते हैं। ओके, मैं इसमें पैटर्न पे भी लाइक आई गिव लाइक लेट्स से इजी, मीडियम, हार्ड, या फिर पेस लो, मीडियम, फास्ट। ठीक है, तो ये मेरे ऑप्शन जो रहेंगे लेट्स से डिफिकल्टी के, एंड ये हो जाएगा मेरा लेट्स से पेस का। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, let me also hide these, we don't need that anymore, and I'll also delete this one column. Let's make this bold, this bold, and let's increase the font size thoda sa. Oops, that's fine. ठीक, थोड़ा सा रीडेबल हो गया है, इसका मैं थोड़ा सा ऐसा ये क्या है। ठीक है, सो अब मेरे को सिंपल करना है। पैटर्न क्या रहेगा मेरा, रिदम क्या रहेगा, एंड पेस क्या रहेगा। ओके, लेट मी गो एंड इंसर्ट अ स्मॉल ड्रॉप डाउन एज वेल। दिस इज जस्ट फॉर विजुअल 6, इट मेक्स माय लाइफ इजी इज व्हाई आई एम डूइंग इट। रेंज में लेट्स से डिफिकल्टी डन। ऑल्सो व्हाइल आई एम डूइंग दिस, इजी को लाइट करते हैं, मीडियम को येलो करते हैं, रेड को, हार्ड को रेड करते हैं। वाह, ये वालों से बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही है। रेड कैसा है, चलेगा, करेगा शायद, वर्क्स। ठीक, अभी के लिए चल जाएगा। मीडियम ये रहते, फिक्स दैट मीडियम, एंड द सेम थिंग विल बेसिकली वर्क। श्योर
finally the pace is going to be like my rule, which is going to be some range. We'll call it pace. So beginning again, low, medium, and fast works. ठीक है. Now तो सोच, मेरे को सिंपल करना है. पहला वाला easy हो गया. It works for me. ठीक है. For all of these, I can keep pointers, and I just want to make sure that the pointers increase. So like अगर मैं बोलता हूँ कि easy है तो 3, तो that's like 1 1 1. टोटल कितना हो गया 3. मैं एक स्कोर बनाते जा सकता हूँ, एंड देन मेंटली बाद में मैं उसको जाके मैप कर सकता हूँ. आई कैन गो टू द पैटर्न एंड से मीडियम. What would medium pattern mean? It means that the pattern is not very easy to understand. There is a website called Human Benchmark. वही है ना रिएक्शन वाला? हाँ, ये वेबसाइट पता है तुझे प्रवीण? नहीं. ओके, मैं तो एक सिंपल यहाँ पे कर रहा हूँ. ठीक है, रिएक्शन टाइम. ये देख, अभी जैसे ये ग्रीन होगा मैं इसको टैप करूँगा. ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्लिक में 216 आया. This is about how fast a person can react. Okay, that was pretty horrible of me, but ठीक है, correct. Because मैं attention नहीं दे रहा था पहले इसमें. So this tells you what your reaction time is like for playing games, right? And everyone has very different ones. It doesn't mean that अगर तेरे से हो जा रहा है तो सबसे हो जाएगा. The other is sequence memory. Sequence memory tells you how good people are at long patterns, and you can actually look at the statistics as well. How far do people go? So if you wanted difficulty curve ना कि प्लेयर को कितना याद रहता है पैटर्न्स, तो यहाँ देख सकता है कि 8-9 तक तो लेकिन वो पैटर्न्स याद रहते हैं लोगों को. उसके बाद वो भूल जाते हैं. आंखें ऐसा दिख रहा है उसने किया है ये पहले. तो तेरे गेम के लिए अगर तेरे को जानना था कि लोगों के लिए कितना पैटर्न्स डिफिकल्ट होता है, 10 पैटर्न्स याद कर सकते हैं कैसे, तो तू वैसे. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से इज थिंक अबाउट द फर्स्ट पैटर्न अप. सो आई कैन से वॉल्ट. तेरे गेम के हिसाब से वॉल्ट, तेरे गेम में खाली 2 चीज़ है राइट, वॉल्ट एंड स्लाइड है. तो मैं बोलूँ तेरे गेम में वॉल्ट स्लाइड ये पैटर्न है. ये पैटर्न कितने स्टेप्स का हो गया? 3 स्टेप का, बराबर. अब बार बार अगर मैं रिपीट करूँ वॉल्ट स्लाइड, प्लेयर के लिए कितना ईजी होगा बता? काफ़ी है ना. बट अगर मैं बोलूँ वॉल्ट स्लाइड वॉल्ट स्लाइड स्लाइड वॉल्ट स्लाइड 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 वॉल्ट स्लाइड वॉल्ट स्लाइड, अगर मैं ये पैटर्न रिपीट करूँ 12 स्टेप का, तो कितना ईजी रहेगा उनको याद रखना. उनको दिखेगा भी पैटर्न के नहीं दिखेगा? बता. 12 स्टेप्स का पैटर्न है, क्या उनको दिखेगा पैटर्न या नहीं दिखेगा? स्पीड के ऊपर डिपेंड है. लाइक अगर स्पीड फास्ट नहीं तो हाँ, तो फिर वो जज करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा रिथिंग को. चल मैं तेरे को बोलता हूँ और स्लो करता हूँ मैं. ठीक है, अब देख वॉल्ट स्लाइड वॉल्ट स्लाइड वॉल्ट. अब मेरे को बता क्या ये पैटर्न, ये एक पूरा पैटर्न में एक भी चीज रिपीट हो रहा है क्या? एक भी पैटर्न किधर भी रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. एटलीस्ट लेट्स कंसिडर नहीं हो रहा है. मतलब किधर तो देखो वॉल्ट स्लाइड से दिख जाएगा, बट अगर पूरा देखिए तो ये पूरा लूप ऐसे कंटिन्यू होएगा, राइट? अब तू मुझे बता कभी भी पैटर्न समझेगा क्या? स्लो पे भी या फास्ट पे भी? है वो भूल जाएगा. नहीं स्टेप एग्जैक्टली भूल जाएगा. अब तो समझो पैटर्न में डिफिकल्टी क्या हुआ. पैटर्न में डिफिकल्टी हुआ जो पैटर्न का चेन है वो कितना है, और दूसरी बात तो मल्टीपल पैटर्न्स. ये पैटर्न 1 हो गया, पैटर्न 1 के बाद पैटर्न 2 पे जा सकता है, फिर थर्ड पैटर्न पे रैंडमाइज कर सकता है. तो तेरे पैटर्न्स रेडी रह सकते हैं ऑब्स्टिकल्स के, और तो रैंडमाइज कर सकता है. तो वो लेवल डिजाइन करने के लिए कितना ईजी हो रहेगा? ईजी हो रहेगा. बट प्लेयर को फिगर आउट करने के लिए कितना डिफिकल्ट रहेगा? वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा. समझ आए? तो पैटर्न्स का समझा. अभी मीडियम ईजी मीडियम हार्ड का मतलब क्या है तू डिफाइन कर सकता है. अगर पैटर्न डिफिकल्ट है तो ऑटोमेटिक लेवल डिफिकल्ट हो जाएगा पहले वाले से, भले ही पेस एंड रिदम सेम है. अब तू सोच मैं रिदम भी चेंज करता हूँ. मतलब कि अगर मैं पहले ईच वन 1 सेकंड पे दे रहा था, अब सो बेसिकली अगर कंसिडर कि ये रिदम है, ठीक है, ये पर सेकंड है, ये सारे पर सेकंड है या पर स्टेप है, ठीक है, पर यूनिट टाइम है. लेट्स से तो बोलेगा कि 500 मिलीसेकंड से 500 मिलीसेकंड, बट पर यूनिट टाइम है. यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल आता है, यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल आता है, यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल आता है. उसके बाद सीधा यहाँ पे ऑब्स्टिकल आता है, और फिर यहाँ पे 2 सेकंड कुछ नहीं आता है, एक ऑब्स्टिकल आता है, और फिर एक ऑब्स्टिकल, और फिर मल्टीपल 2 ऑब्स्टिकल आता है. अब मेरे को बता अगर मैं ये पैटर्न के साथ तेरे को रिदम दूँ, तो मेरे को बता इवन विथ अ ईजी पैटर्न
डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं? वॉल्ट स्लाइड मतलब यहाँ पे वॉल्ट है, यहाँ पे वॉल्ट है, यहाँ पे स्लाइड है, ठीक है, फिर से वॉल्ट फिर स्लाइड आएगा, फिर वॉल्ट आएगा, फिर वॉल्ट आएगा, फिर स्लाइड आएगा, फिर वॉल्ट आएगा, वॉल्ट आएगा। अब तुम एक बता, इसमें भी डिफिकल्टी आया कि नहीं आया? खास से क्यों? क्योंकि रिदम चेंज हुआ। तो अब इट्स नो लॉन्गर परसीवेबल टू द प्लेयर दैट इजीली। तो समझ, पैटर्न ब्रेक किया तूने रिदम का, तो रिदम का पैटर्न ब्रेक कर या तो ऑब्स्टिकल का पैटर्न ब्रेक कर। प्लेयर को वो प्रिडिक्टेबल रहेगा क्या? कैन इट बिकम मसल मेमोरी है नाउ? आर यू अलाउिंग इट टू बिकम मसल मेमोरी और आर यू फोर्सिंग द प्लेयर टू बी अटेंटिव? बता। सेकंड से दैट्स वाई द गेम इज नॉट रिफ्लेक्स एंड इट्स रिएक्शन। समझा? अगर वो मसल मेमोरी होता तो वो रिफ्लेक्स बन जाता। तो तूने बहुत सारे गेम्स देखे होंगे जहाँ पे तू लाइक आंख बंद करके खेल सकता है, बिकॉज वो रिफ्लेक्स बेस्ड है। यहाँ पे तो काउंट करके नहीं खेल सकता, ये प्योरली रिएक्शन बेस्ड हो जाएगा। एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स ही प्लेज दैट लेवल, अनलेस दैट लेवल इज रैंडम जनरेटिंग, टाइम ट्रायल जैसा। बट तेरे गेम में बहुत सारे लेवल्स है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट? सो नाउ द थिंग इज यू अंडरस्टूड रिदम एज वेल। फाइनली पेस क्या हो गया? इन दोनों चीज़ों का स्पीड, कि एक ऑब्स्टिकल कितना फास्ट आ रहा है। ये बहुत सिंपल है। अगर एक सेकंड में आ रहा है, हाई जाते जाते 1.3 सेकंड्स में आ रहा है। अगर तू सोच मैंने ये हार्ड कर दिया तो कैसा हो जाएगा लेवल? कितना डिफिकल्ट होएगा बता। समझा? अब तुझे समझा कैसे प्लान करना है बीट चार्ट तेरा? ये हो गया तेरा बीट चार्ट, ठीक है? डिड दिस हेल्प द क्वेश्चन? डिड आई आंसर द क्वेश्चन? यप। Okay, so that's how you would set the difficulty curve, and you would have to balance it based on, I already told you, you would check human metrics, जैसे human benchmark जैसे वेबसाइट्स है, तो प्लेयर्स का टेस्ट करे, तो 10 लोग के साथ एक ग्रुप बना के चेक कर ले कि लोगों का एवरेज रिएक्शन टाइम क्या आ रहा है, उनसे करवा ले वो क्लिक वाला, एंड देन गेम बना, एंड देन उनसे प्ले टेस्ट करा के तेरा बैलेंसिंग कर। समझा? तो आइटरेटिव प्रोसेस है प्लस एक एनालिसिस प्रोसेस है। एनालिसिस तो पहले करेगा, उसके बाद तो आइटरेशन में उसको फाइन ट्यून करेगा, उसको करेक्ट करेगा, तेरे एनालिसिस को रिव्यू करेगा कि तूने जो एनालाइज किया था, तूने जो एक्सपेक्ट किया था वो मैच हो रहा है कि नहीं, एंड देन यू विल फिक्स इट। दैट्स व्हाई आई सेड बैलेंसिंग इज नॉट डिफिकल्ट, यू जस्ट नीड द राइट अप्रोच एंड द राइट माइंडसेट टू इट। Okay, if you do it step by step, I promise you even massive economies, massive games. What do you think? How do 4x games get built? There is a designer somewhere making a 4x game, right? So if you say if you say that designing a game like probably Subway Surfers is difficult or to balance, it shouldn't be, because there is a proper structure to it. There is someone that's making a 4x game. There's a proper technique to it. If you can have the right mindset and the right approach to it, you will be able to balance it. That's it. You just need to not give up. That's all. ठीक है? ओके, बोल। जो चार्ट है वो बाकी गेम के लिए भी यूज हो सकता है क्या? लाइक हर एक गेम बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज देख अगेन बैलेंस में एक चीज वी डू इज वी डिसाइड फॉर फ्लो स्टेट्स। रिमेंबर ये दिस वन, एंजाइटी, बोर्डम, फ्लो, ये मैंने बताया था क्लास में। जितना ज़्यादा प्लेयर का स्किल बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा तो गेम में उसका स्किल डेवलप कर रहा है, उतना ज़्यादा उसका देखो चैलेंज बढ़ाना पड़ेगा, बट एकदम ज़्यादा नहीं, वरना फिर एंजाइटी आ रहेगा प्लेयर को। तो स्किल लेवल एंड एंजाइटी का जब तक स्किल लेवल एंड चैलेंज का जब तक तेरा बैलेंस है और अंदर एक अच्छा ऊपर नीचे फ्लो हो रहा है, उससे प्लेयर फ्लो स्टेट में रहेगा। एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन यू मेक पीपल प्ले टेस्ट योर गेम, but majority of it you can actually do in the analysis stage as well, in the initial stage itself. So this sheet, if you're using the right metrics, should allow you to get something like this. It should be an up and down. समझा? कि इधर कुछ क्लैरिटी चाहिए। लाइक अगर ये बना रहा कोई, मेरे को समझ के आएगा कि जो बीट चार्ट है और उस गेम के हिसाब से मेरे को कैसा बनाना चाहिए। तेरे गेम में जो चीज मैटर करते हैं, एक अगेन सेम क्वेश्चन सेम आंसर टू दैट, तेरे गेम में जो चीजें एक लेवल को वैल्यू या वाइब देते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीट चार्ट बना रहा होता तो मैं जोन के बारे में भी सोचता इस गेम में। अभी तो मैं नहीं सोच रहा, बिकॉज लाइक यू नो दैट्स नॉट समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। इज दिस अ पार्ट जोन क्या है? तूने बोला तेरे गेम में 5 जोन है, तो इज दिस अ जोन 1 गेम, इज दिस अ जोन 1 गेम, सॉरी लेवल, बाद में आके वो जोन 2 पे आएगा कभी ना कभी, राइट? जहाँ पे हमने बोला था बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, कभी ना कभी वो जोन 3 पे रहेगा, कभी ना कभी वो जोन 3 पे रहेगा। फिर मैं बोल सकता हूँ कि जोन 4 पे मैं 3 लेवल देता हूँ, क्योंकि फाइनल लेवल जो ये बॉस फाइट है वो क्रेजी लेवल होता है। जोन 5 इज लाइक द रेड लेवल, द ओनली रेड लेवल, एंड पीपल विल नो इट एज द रेड लेवल, बिकॉज ये एक ही लेवल है जिसमें बैकग्राउंड रेड होता है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लेयर्स वैसा एक उसके अराउंड एक ये बना दे कि डैम did you clear the red level? I want that's intended. I want that experience to be a part of the game. So
I will plan these zones this way, and now I will make sure that this is the hardest level based on my mechanics. But what else can affect my feel of the game? You know what? Music can affect it. So what kind of music do I want? What affects music? Does BPM affect? Okay. What else affects the music? Does the genre affect the? I mean, genre BPM थोड़ा सा related है, but you get the idea. So feel क्या चाहिए? या मैं overall feel decide कर सकता हूँ. Feel कैसा चाहिए मेरे को? ठीक है? यहाँ पे थोड़ा calm चाहिए. यहाँ पे एकदम chaotic चाहिए. So I can describe my feel as chaotic. I want like probably here I want like a techno sort of chase or techno house kind of thing, and then somewhere here I want like a hard rock metal rock kind of thing, or techno rock kind of thing. Okay, so this again is something like probably like you can think about like an EDM. I don't think EDM would be the right idea, or like dubstep kind of thing. But just BPM enough to like keep the vibe going, and then somewhere towards here I want to make the feel aggressive. I wouldn't say this is calm. It's more of a chill chase kind of thing, right? Because it's the very first level. But then eventually I want to progress that. This would be a part of my beat chart. Anything and everything that you feel on a systematic level, on a technically recognizable level, is affecting the feel of your game should be a part of the level of the beat chart. If it's changing per level, it should be a part of the beat chart. तो समझ रहे? So अगर तू कॉमन बीट चार्ट्स देखेगा बहुत सारे गेम के, ठीक है, ये देख, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक गेम डेवलपर का इसका है beat chart. You can see they've also mentioned sound and music, right? They've also mentioned what else is going as a part of your game. You can actually think about this way. You know what? That's a great idea. You can think about what's a part of the obstacle list. So obstacles सोच सकता है तो maybe at some point you only probably have like vaults here. You only have, let's say, vaults again here, but these are like the pattern probably like vaults. Just vaults बहुत boring हो रहेगा. Vaults and slides here I can say, but imagine you get vaults and slides here as well. The patterns change a little bit more. At this point, maybe vault slides, and I'm just giving an example. Wall run, for example, okay? Or something else comes in here where the enemy starts throwing grenades. So you have vault slides, wall run, and then eventually, suddenly, the enemy starts throwing sticky grenades. समझा तो डिफिकल्टी कैसा रैंप अप हो रहा है. तो बीट चार्ट में तो वो सारे चीज़ें साथ में यूज़ करना चालू कर सकता है. ऐसे ऐसे तो धीरे धीरे लेके आ सकता है और लास्ट लेवल तक लेके आ सकता है. समझा सर? तो ये तेरा ऑब्स्टिकल पूल हो गया. ऐसा इसमें से तेरा लेवल डिजाइनर कुछ भी उठा के लेवल डिजाइन करेगा. ऐसा है वो. ये लेवल डिजाइनर के लिए है, तो लेवल डिजाइनर के लिए एंड बाकी लोगों के लिए जो भी काम कर रहा है उसके लिए है. उसके हिसाब से तेरा आर्टिस्ट आर्ट बनाएगा, तेरा जो भी साउंड इंजीनियर है वो साउंड देगा तेरे को. सो यू नीड द बीट चार्ट फॉर श्योर. ओके, सो दिस विल चेंज नाउ टू द बीट चार्ट. दिस इज नॉट अ डिफिकल्टी कर्व, but this is the answer for this game. It's a very different answer for other games. Difficulty curve in a puzzle game, difficulty curve in a runner game, difficulty curve in a racing game, difficulty curve in an RPG game, in a RTS game, in a 4X game, in a simulation game, in a management game, in fact even in a visual novel game. They're all so different because, like I said, the first thing you would try to recognize is what makes something difficult. समझा? तो ऐसा है. यहाँ पे भी तुझे नंबर्स देने पड़ेंगे. रिदम कितना पेसिंग हो, कितना डिस्टेंस होना चाहिए रिदम में, कितना वैरायटी इज अनरिकग्नाइजेबल, कितना वैरायटी इज रिकग्नाइजेबल. पैटर्न अगेन सेम थिंग. पेस अगेन, how fast, what's the maximum pace I can go at, which is, let's say I want to not give more than 300 milliseconds of reaction time, and what's the slowest where they don't get too bored. अगर तो स्लोएस्ट को 3 सेकंड हो रहा है, 3 सेकंड में एक ऑब्स्टिकल भाई स्टार्टिंग में प्लेयर गेम छोड़ देगा. तो देखो एंगेजिंग भी रखना पड़ेगा, बट ऐसा भी नहीं कि सबसे डिफिकल्ट हो गया. ऐसा ये सोच के तो चलना पड़ेगा. दैट्स ऑल. ठीक है. डिफिकल्टी एक और चीज से आ सकती है, विच इज नंबर ऑफ रीट्राइज और नंबर ऑफ हिट्स बिफोर यू गेट कॉट. नंबर ऑफ कोलिशंस अलाउड. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी टाइम टेकन टू रिकवर आफ्टर अ कोलिशन. Time to recover after collision. Time to recover. So you can think about every single thing that makes your game easy or difficult, that level easy or difficult. समझा? Simple. बढ़ते रहा, उसके हिसाब से अपना लेवल प्लान करते रहा, टेस्ट करते रहा, and then go back to it. समझा?
इसके लिए तो ये जो बाकी का बैलेंस पार्ट है वो आइटरेटिव करेगा, बट इनिशियली एक प्लान तेरा सेंसिबल रहना चाहिए, एनालिटिकल रहना चाहिए. ये हर चीज ऐसा नहीं रहना चाहिए कि ओ आई जस्ट टेस्ट इट एंड सी हाउ इट गोज. तो वैसे करने आएगा तो बड़ा गेम तो कभी बन नहीं पाएगा. एनालिसिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि तू अपना मेजॉरिटी काम खत्म कर रहा है यहाँ पे, फिर उसको फाइन ट्यूनिंग कर रहा है. फाइन ट्यूनिंग के लिए आइटरेशन बेस्ट है, ठीक है. और फिगरिंग आउट सम स्टफ लाइक फिगरिंग इवन टू लाइक रिजॉल्व योर ओन थॉट्स समटाइम्स, इट हेल्प्स टू आइटरेट, ठीक है. कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे. हाँ. Okay, next is how many animations should roof run have? Just enough to basically like animations क्यों होता है? Animations are exactly for status. Okay, animation समझ हमेशा exactly है किसके लिए? Yes, अच्छे दिखने के लिए है, but मेरे को बात बता, अच्छे दिखने के लिए तो कितने animations 1000 भी बना सकता है, right? But always तो उतने बनाता है जितने से तेरा गेम उतना बराबर कम्युनिकेट कर देता है जितना उसको करना है. मतलब if you have a vault in your game, that's why you have a vault animation. If you don't have wall run, then why would you have wall run animation? You wouldn't have it, right? Starting में टाइम पास तो करेगा नहीं प्लेयर, बट अगर एनिमेशन पार्ट है तेरे कैरेक्टर के पर्सनैलिटी का, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब भी वो वॉल्ट करता है तो वो यू नो पीछे वाले को लाइक उंगली दिखा रहा है या ऐसा स्माइल कर रहा है, स्मर्क दे रहा है. So the point is that there you are trying to showcase the personality of the character. But in this game, is there any personality of the character? No. Then do we need to add an extra animation? No. So we'll stick to only the action. हाँ. ये सेम कुछ चीज आपने जो अभी बोली, हाँ. हम लोग कहीं डिस्कस कर रहे थे आर्टिस्ट और हाँ. करने का. हाँ. अभी बहुत कम ज्यादा टाइम, बहुत कम Exactly. तो फिर हमने हाँ. सोचा कि लेट्स नॉट ऐड इट, एंड अगर Yes. हमारे पास कहीं ना टाइम बचा तो फिर कर लेंगे चेंजेस कुछ. हाँ, अगर टाइम बचता है मैं तो बोलूंगा कि पॉलिशिंग करना, ये मत करना. क्यों? क्योंकि तुम स्कोप क्रीप कर रहे हो. क्या ये तुम्हारे डिजाइन पिलर में था? वॉज अ पिलर द पर्सनैलिटी ऑफ योर कैरेक्टर? नो. देन डोंट डू इट. एग्जैक्टली दिस इज वाई यू मेड पिलर्स. पिलर्स क्या थे तुम्हारे? उस पे जाओ, उसी के अराउंड गेम बनाओ, क्योंकि इसको बोलते हैं स्कोप क्रीप. ऐसे करते करते तो गाड़ी भी डाल देगा, गाड़ी के अंदर से निकाल सकता है प्लेयर को, वो भी डाल देगा, गन्स भी डाल देगा और जीटे भी बना देगा, 2D का 3D भी कर देगा, क्या बना देगा, पूरा साइबरपंक गेम बना देगा. तो वो मत कर, क्योंकि हाँ क्या वो कूल है? हाँ, तो कूल बनता है तो कितना कूल बन जाएगा. इसीलिए कंप्लीट योर गेम्स. व्हेन यू डिजाइन द पिलर्स ऑफ हिस गेम, स्टिक टू देम. आस्क योरसेल्फ, इज दिस मैकेनिक अ पार्ट ऑफ, इज दिस ब्रेकिंग माय पिलर और स्टिकिंग टू माय पिलर, इज इट इन एनी वे रिलेटिंग टू माय पिलर? इफ इट इज, कीप इट. इफ इट्स नॉट, डोंट ऐड इट. सिंपल. दैट्स व्हाई यू हैव अ पिलर. फाउंडेशन है ही नहीं अभी, उसका पिलर ही नहीं है, तो मत कर, ठीक है. एनिमेशन उतने बना जितने रिक्वायर्ड है स्टेटस इंडिकेशन के लिए. वॉल्ट पॉसिबल हो रहा है, क्या हो रहा है. हाउ बिग शुड अ लेवल बी? Okay, now this is a great question because this is catering to directly your audience. If you ask me, a level for a D&D player is never big enough, man. They will play for 8 years, 8 days, 8 months, 8 hours. They don't care, okay? There are certain games that are running since 8 years. 8 साल से गेम चल ही रहा है, तो क्या लगता है उसका लेवल कितना बड़ा रहेगा? तब समझा देखो मैं क्या बोलूँ? Okay. So if you're like building a game that's that massive and the audience is engaging with it, they don't really care how big a level is. But if you're making a game for casual audience जो मोबाइल पे खेलने वाला है, 5 मिनट खेलने वाला है, उसमें ज़्यादा बहुत सारे गेम्स है खेलने के लिए और सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए खेलने वाला है, तो लेवल छोटा रख. तो ये तेरे ऑडियंस पे डिपेंड करता है. बट तू ऑडियंस का डेटा कैसे निकालेगा? देखो, KPI होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. ओके, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टेल्स यू व्हाट इज द सेशन ड्यूरेशन. ये एंगेजमेंट मेट्रिक में आता है. So for example, research about KPIs and live ops, that will give you all your answers. Okay, so KPIs and live ops, you search this, I promise you will get all the information you're looking for, especially for games. Okay, so search for games and you'll get all the information you're looking for. Live ops for games, you'll get all the, देख यहाँ पे तेरे को जो भी information चाहिए वो तेरे को मिल जाएंगे, गूगल करेगा तेरे को मिल जाएंगे. But इसमें कुछ आता है engagement metrics. Okay, engagement metrics for your games. Okay. In games, there is one important one, which is session duration, session length जो है. यहाँ पे तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सर्च करेगा तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा. तो गूगल करेगा, एक ही वेबिनार में को सब मिल जाएगा, ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग इट राइट नाउ. बट इसमें आता है सेशन एंगेजमेंट मैट्रिक्स में एंगेजमेंट, रिटेंशन, कन्वर्जन, इकोनॉमिक एंड सोशल, और भी टाइप के होते हैं. यू कैन सी हाउ यू कैटेगराइज इट. बट लेट्स गो टू एंगेजमेंट देयर इज सेशन ड्यूरेशन. ओके, नाउ लेट्स चेक व्हाट इज द सेशन ड्यूरेशन for a casual runner game on Android. ठीक है, सर्च कर लिया तूने, तेरे को मिल गया कि there is 2 to 5 minutes. मतलब कि तेरा गेम लेवल जितना भी लंबा बना तो 2 से 5 मिनट में खत्म होना चाहिए. समझ गया?
हाँ The best games can get 7 to 9 minutes. The average games are able to do something like 2 to 3 minutes. In like level design, like short, fast-paced levels, 2 to 3 minutes are recommended to maintain high satisfaction and engage immediate. Google कर, research कर, कहाँ पे कौन से source से ये information आ रहा है, वो देख, क्या कौन से publications में तेरे को data मिल रहा है, कितने games को देख के मिल रहा है, वो सब review कर and तेरे को आंसर मिल जाएगा research करके, ठीक है? तब ना देखो, वरना you can do something known as player profile. Player profiling is basically like, I don't know if like there's a good in games बोलता हूँ मैं. Player profiling, good. Like player profiling is basically trying to create an ideal player who is going to be playing your game and trying to analyze कि ये क्या करता, logically ये करता क्या. इसलिए जब मैंने बोला था कि Bartle's taxonomy, जो तूने भी बोला था मेरे को कि you had a question on that, how would all of these players behave differently in your game, in other games, and which is your target audience? And then the question is, कर ले आएगा तो बताया ना खाली. You back? आ गया तू? ओके, तो प्लेयर प्रोफाइलिंग बेसिकली वही है. देखो बेसिकली अपने प्लेयर का एक मॉडल बना के सोचना है कि अगर एक समझ ले, मैं सोचता हूँ, चल मैं कैजुअल गेम बना रहा हूँ, इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ. एक बच्चा है जो स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद में वो अपना होमवर्क करता है, खाना खाता है, नीचे स्पोर्ट्स करने जाएगा बच्चों लोग के साथ में अपने सोसाइटी में, ऊपर आएगा, मे बी उसको 1.5 घंटा 1 घंटा मिलेगा मोबाइल के साथ में एक दिन में. उस 1 घंटे में बहुत सारे बाकी गेम्स जो वो देखने वाला है. उस 1 घंटे में अगर उससे मेरा गेम खोला तो कितना टाइम मैं उसको एंगेज रख सकता हूँ, कितने टाइम का मैं कंटेंट दे सकता हूँ जिससे वो ओवरवेल्म होकर दूसरे गेम में नहीं जाए. बिकॉज कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है. अगर वो एक लेवल चालू करता है और इस दिन पे खत्म नहीं कर पाया ना तो कल मेरा गेम नहीं खेलेगा. उसको कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है. उसको ऐसा फील करना कि अरे यार मैंने बहुत कुछ कर लिया, 3 लेवल अगर उसे करें तो भाई बहुत ही खुश रहेगा वो. देखो ये सोचना है कि उस प्लेयर का अटेंशन स्पैन कितना है, उसको डोपामिन कितने टाइम में चाहिए एंड कॉम्पिटिंग गेम्स क्या कर रहे हैं. तो वो रिसर्च करके एंड वो एनालिसिस करके तो फिगर आउट कर सकता है कि तेरे गेम का मैट्रिक्स कैसे सेट करना है. डिफरेंट जॉनर्स के लिए डिफरेंट करेगा, डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए डिफरेंट करेगा. करेक्ट? तो अभी देखो, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yep. So the size of a level is not how big it is in size, it's about how long it takes. Okay, the other thing is it should not feel intimidating. ऐसा बाहर से देख के ऐसा लगना चाहिए ओ भाई बहुत बड़ा हो गया, ये तो नहीं खेल पाऊंगा मैं. Intimidating भी नहीं लगना चाहिए. Players should be encouraged to explore a level rather than be scared of like कब खत्म होगा ये. ऐसा मोटा किताब नहीं लिखना चाहिए उसको. Page by page उसको आगे लेके जाओ. ठीक है? How should I approach level design? How do I keep it awesome throughout all checkpoints, not just at the beginning? This again has a lot to do with the pacing in a level. Okay. Now, if I search for beat charts in games, there is another type of a beat chart I see, which also applies to a level within a level itself, which is something like this. Okay? Look at this. It talks about time and intensity. As you progress to a level, how does the intensity change in a level? How do the moods shift within a level? Okay? Because this matters a lot. Like for example, here, this is regarding one single level itself, right? ये combat intensity दिखा है एक level के अंदर. तो if you want to make pacing of a game, I will say think about the intensity and what's actually going through the level, like this level progression. तो एक level progression graph बना, उसमें क्या हो रहा है और उसमें intensity कैसा चल रहा है तेरे level में, वो review कर. क्योंकि ये अच्छे से एक क्या बोलते हैं, एक वेरिएशन देना चाहिए प्लेयर्स को, हाइज भी देना चाहिए, लोज भी देना चाहिए, एक अच्छे रिदम में देना चाहिए. ठीक है? सो गो अहेड एंड रिव्यू दीज ग्राफ्स एंड ट्राई टू डिजाइन अ ग्राफ फॉर योर लेवल दैट फील्स राइट. क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर तो पेस बढ़ा के रखेगा तो एंजाइटी आएगा प्लेयर को. ठीक है? अगर तो एकदम स्लो रखेगा तो बोर होएगा. So you want to make sure that whatever pacing you're doing feels good. There's a nice build up, there's a gradual learning phase, and then you're taking it to the next challenge, then letting them rest, and then you're increasing it before giving the climax. Take all your levels through the same. Look, if you take the average of the overall points, तो regression, linear regression is like नीचे से ऊपर जा रहा है. Linear regression क्या है? Basically, अगर तो कोई भी parts को, कोई भी points को देखेगा कोई भी ग्राफ पे, तो उसके थ्रू एक बेस्ट एवरेज लाइन बना सकता है. तो अगर ये पॉइंट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं तो एक एवरेज लाइन ऐसा ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है.
बेसिकली वो लीनियर रिग्रेशन है. तो इन पॉइंट्स को भी देखिएगा तो एवरेज लाइन एक्चुअली ऊपर ही जा रहा है. तो इंटेंसिटी ऊपर जाने थे, डिफिकल्टी ऊपर जाने थे, बट ऊपर नीचे के साथ. इसमें तो इमोशन चेंज कर सकता है, इंटेंसिटी ऑब्स्टिकल्स चेंज कर सकता है, वेरिएशन लेके आ सकता है, तो लेवल विल फील फ्रेश. समझा? साइकोलॉजिकली कैसे प्ले करना है वो इंपॉर्टेंट है. तो साइकोलॉजिकली हाँ एक डिजाइन है, एक देयर इज समथिंग दैट वर्क्स एंड दिस इज व्हाट वर्क्स. सो यू कैन अगेन गो विद द एनालिसिस, देन आइटरेट इट एंड फाइन ट्यून इट एंड इट विल वर्क फॉर यू इफ यू डू इट राइट. ठीक है, समझा? देखो क्या सर्च करना ना, ये सब तेरे पास अभी है, वीडियो में भी आ जाएगा. ठीक है, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? Yep. Okay. Apart from this, of course, there's many other things in the levels. I'm specifically talking about your game because it doesn't have environmental storytelling. It doesn't really have a narrative. It doesn't really have other things. But of course, in a bigger game, everything that affects a level should be considered in the flow of the level. Okay, and you should think about the variation, the pacing. Because if I have a constantly a metal music playing, Doom would basically tire me immediately. I don't want that. In fact, even in Doom, the music does die out and then start back in again. It does have intensities in the music itself, the metal songs in Doom as well, अगर तूने सुना हुआ है तो. But हर चीज़ का एक ये होता है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट रहता है. अगर कॉन्स्टेंटली हाईएस्ट इंटेंसिटी पे कोई भी चीज़ रखेगा, कलर्स को, ऑडियो को, साउंड इफेक्ट्स को, स्क्रीन शेक्स को, तो प्लेयर ऐसा थक जाएगा उससे. तो वो चीज़ का पेसिंग ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव रखेगा विद द डिफिकल्टी ऑफ द लेवल, तो अच्छा फीलिंग आएगा. सिंपल. तो तू एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, तेरे गेम के लिए स्पेसिफिकली जाएंगे तो बेसिकली यू कैन जस्ट डू इट विद द ऑब्स्टिकल्स एंड द म्यूजिक एंड द कलर एंड स्टफ लाइक दैट, एंड ऑफ कोर्स द रिदम एंड द पैटर्न दैट वी टॉक्ड अबाउट. सो व्हाटएवर वाज इन दैट बीट चार्ट दैट वी क्रिएटेड. ठीक है, perfect. How do I prioritize mechanics before the deadline? Okay, have you heard of a vertical slice and a minimum viable product? Not really. Alright, so let me explain what a vertical slice is. A vertical slice, and let me show you an example, versus MVP. Okay, this is for everything that you make. Vertical slice का point ये है कि ऐसा क्या हो गया इसका MVP. नहीं, this is not a good example at all. Although it explains it, I don't want this, but it gives बहुत ही vague है वो. ऐसा क्या हो गया? Let's talk about this. Okay, this is good. Vertical slice is a demo which basically takes every single mechanic in your game, okay, and that's why we call it a vertical slice. Whatever layers there are, whatever there is in your game, every single thing, and it creates it's a proof of concept. It shows that something is possible, that हम ये बना सकते हैं, ये बन सकता है, ये ऐसा लगेगा. ठीक है, vertical slice हो. बट तेरे गेम के लिए vertical slice नहीं चाहिए, तेरे गेम के लिए MVP चाहिए. ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, MVP इन गेम्स अगर तू देखेगा, minimum viable product. Let's go. I have a product. What that says is, even if you don't have all the layers, all the plans that you had thought about, this again, I don't want to get into this image वो बहुत ज़्यादा vague जाएगा. Even if you don't have every single mechanic in your game, ठीक है, you have enough mechanics to make a playable experience. यानी कि think about it this way: can you make GTA without can I make a fun game like GTA without adding bank heists? If I just have shooting, car stealing, and exploration, and hand-to-hand combat, can I make GTA with that? Saving, exploration, hand-to-hand combat, and car stealing, and guns. That's enough. So मेरा MVP बन रहा है. Is this my vertical slice? Does it have flying vehicles? Does it have heists? Does it have missions and stuff like that? It does not yet. But even like with basic quests. But it doesn't have a system to invest and whatever else there is in GTA. It's not a vertical slice, but it is an MVP that can go out in the market and be playable by the first batch of users. That is your MVP. So initially, when you are basically making mechanics, always plan for an MVP because बाकी चीजें बाद में add कर सकता है. Vertical slice मत बनाने की कोशिश करो. Vertical slice एक अलग रीजन से होता है. Vertical slice is to prove that we can do this. If I wanted investment, if I wanted to prove to a team that I can build something, I would make a vertical slice, not an MVP. But if I wanted to put something out in the market, what would I do? I would make an MVP. ठीक है, so you need to think about what is the purpose. अगर तू ये गेम को पब्लिश करने की सोच रहा है, प्लेयर्स से खिलवाना है, MVP बना, प्लेयर्स तक जाने दे, and then add things that enhance the gameplay and improve metrics like retention, engagement, probably try to monetize the thing or convert more players, bring in more organic user acquisition.
वो सारी चीज़ें तू करेगा बाद में, पहले MVP बनेगा, ठीक है। और मैंने जो भी टर्म्स अभी बोले ये सारे KPI के टर्म्स है, सारे लाइव ऑप्स के गेम्स है, टर्म्स है, तो सर्च कर सकता है, ठीक है। मैं फ्री टू प्ले के हिसाब से बता रहा हूँ बिकॉज तू फ्री गेम अपलोड करने की सोच रहा है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, हाउ कैन आई गिव बेटर डायरेक्शन टू आर्टिस्ट? ओके, I don't fully understand the art side, so I find it hard to give proper direction to artists. How can I improve this and make collaboration work better? See, one thing that artists and you definitely understand is the feel of a scene. Okay, so as long as you can communicate your intention with the level or the concept or the character, if you can describe it well in a language that they understand, I'm pretty sure they will be able to tell you कि ये कैसे दिखा सकते हैं आप। अगर तो बताना चाहेगा ना कि ऐसा दिखाओ वैसा दिखाओ, that's actually bad guidance, because the reality is that that's their job as an artist. So if you can give them your intention of what you want to fulfill with what kind of art, they will be able to tell you what kind of art you should go for. Think about it this way, अगर एक बार्बर है जो कि 12 साल से बाल काट रहा है and he's a very senior barber, okay, a very senior hair stylist, एंड यू गो टू हिम लाइक मेरा यहाँ से आधा काट लो और ये ऐसा लंबा छोड़ दो, वो कैसा लगेगा? तू अपने स्टाइल में फिक्स्ड है, तुझे लगता है वो बेस्ट लगेगा। बट अगर तू थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर उसको पूछता है, यार देख मेरे को अप्रोचेबल लगना है, मेरे को डिसेंट लगना है, मेरे को बिजनेस स्टाइल के हिसाब से बनाना है, या तो उसको बोलता है यार मेरे को बहुत क्रिएटिव लगना है, मेरे को एकदम मेरे को क्रेजी वाइब चाहिए, तेरे को पता है ना वो डिफरेंट तेरे को स्टाइल बताएगा। और तू अगर उस पर छोड़ेगा, वो अपने 12 साल से तेरे को बेटर चीज़ बता सकता है जो तू उसको रेकमेंड कर सकता है उससे। सो अगर तू एक आर्टिस्ट से बात करे, उसको आर्ट मत बता, उसको ये मत बता कि आर्ट ऐसा कर, कलर ऐसा कर, पिक्सल ऐसा बना, ये मत कर, ये उसका जॉब है। तो उसको ये बता कि तेरा इंटेंशन क्या है, बिकॉज इंटेंशन एक ऐसी चीज़ है जो दोनों लोग समझ सकते हैं, समझा? If that makes sense. So if you give him your intention, even if he doesn't play games, even if he doesn't understand layers of a game, but you tell him कि ये बैकग्राउंड है, मैं चाहता हूँ कि जब प्लेयर गेम खेले तो उसको क्लियरली एक ग्लांस में समझे कि बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है, क्या चीज़ पे चढ़ सकते हैं, क्या चीज़ कलेक्टेबल है, और तो ये चीज़ आर्टिस्ट पे छोड़ देता है, तुझे लगता है वो काम कर पाएगा अपना? एग्जैक्टली। सो डायरेक्शन वैसा दे, इंटेंशन कम्युनिकेट कर और एंड देन लीव इट अप टू देम। If they come back with something that doesn't work for you, now you can go back and give feedback on that and say, you know what, I like the art that you made, but I feel like ये जो कलर है इससे मेरे प्लेयर को लग सकता है कि यहाँ पे जाना है, जबकि मैं चाहता हूँ कि they don't go there right now. I want them to go here first and then go there. Let the artist figure out, because they also understand color, they also understand feel and mood. That's something they understand and they learn in color theory. And if they haven't learned that gives them an opportunity to learn that and to explore that. तो तू बता सकता है यार ये मेरे लिए फील बराबर मैच नहीं कर रहा है, they will think about why that's not matching. So that deliberation might happen. I'm not saying everyone's perfect, but give them the opportunity to explore that themselves, because that's their whole study. तो समझ रहा है? So उनको ये मत बता कि आर्ट कैसे कर रहा है, उनको ये बता कि तेरा इंटेंशन कैसा है. Let them come up with their best solution. They might come up with something amazing. Intentions of multiple references एक लगे, like एक रेफरेंस अगर देगा तो काम नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि वही करना है उसको, बट मल्टीपल रेफरेंसेस अगर तू देगा कि लाइक कैसे अलग दिख रहा है वो, और फिर क्या उसका फील और थीम है, तो वो होना चाहिए उसकी। तेरे को पता है एक और चीज़ अच्छी तो कर सकता है, इंस्टेड ऑफ यू गिविंग द रेफरेंसेस, आस्क देम टू ब्रिंग रेफरेंसेस, बिकॉज तुझे समझेगा कि उसको क्या समझा है, तुझे ये समझेगा कि उसको क्या समझा है, एंड देन अगर वो लेके आ रहा है और फिर तुम अलाइन हो रहे हो, क्योंकि वो लेके आया इसीलिए वो बहुत सही समझेगा उसको, तू लेके रहेगा शायद से तेरे रेफरेंस को भी मिसअंडरस्टैंड करे वो, बट अगर वो रेफरेंस लेके आ रहा है वो तुमको समझा पा रहा है तो ऑटोमेटिकली द कन्वर्सेशन इज स्टार्ट, राइट? सो बेसिकली गिव देम एजेंसी, लेट देम लीड, ट्रस्ट मी पीपल वर्क बेटर व्हेन दे लीड, सो whoever is in your team, just let them lead and automatically just try to align your vision with how they're leading. If you can come onto a common ground on that with your intentions, if everyone is on the same page in their intention, automatically वो intention communicate हो जाएगा प्लेयर को, और प्लेयर वही उसी चीज़ के हिसाब से चलेगा, समझा? That might make it easy. So try that. Does that answer your question? Can I go to the next one? Yep, it's good. Okay. बट जो आर्टिस्ट है ना, But हाँ, वो थोड़े रेफरेंस इमेज ढूंढने के थोड़े से आलसी हो, तो फिर देख वो तो डेडलाइन की बात आती है, सही बोल रहा है, नहीं मत दे, डोंट स्पून फीड पीपल. देख व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट वर्किंग properly in a company? They might lose their job, they might not get paid, they might get bad increments, right? What is the consequence of them not working well in a project in your classroom? They might get bad marks, they might get backlog, they will have to reappear in the exam. Let them face this, and
who do you who do you inform in such a case? The right authority, the right responsible person. In your college, it will be your project manager. The project manager will automatically inform the faculty. They will take care of it the right way. Whereas in a company, who will take care of it? Again, your project manager, your producer will take care of it, and they will inform the right authority. The right authority will take care of it. That's how the state of operation should go. You shouldn't do somebody else's job because they're not doing it. That's nowhere an okay thing. देखो ना ही वो कॉलेज में करना चाहिए, ना ही तुझे वो प्रोफेशनली करना चाहिए. समझ रहा है? तो क्यों करेगा किसी और का काम? वो करेंगे, और वो अगर नहीं कर रहे तो सही इंसान को बताएगा. ऐसा है. ठीक है? Do I need to target all 4 player types? Say, can you do that? Think about it this way. तेरे पास ये डिपेंड करता है तेरे पास कितना पॉसिबिलिटी है, कितना रईस है तू. ठीक है, मैं सिंपली बोल रहा हूँ, कितना पैसा है, कितना टाइम है, कितना रईस है तू. सोच, मैं तेरे घर पे खाना खाने आता हूँ. ठीक है, मैं आता हूँ, अंकित आता है, आदित्य आ जाएगा, सार्थक आ जाएगा, सब लोग, बहुत सारे लोग आ रहेंगे. ठीक है, खाने को बस सब लोग आ रहेंगे. एक बोलता है नहीं भाई मैं तो सिर्फ टमाटो की सब्जी खाता हूँ. एक बोलता है नहीं भाई मैं तो सिर्फ लाइक चिकन खाता हूँ. एक बोलता है ब्रो मैं तो सिर्फ अंडे खाता हूँ. एक बोलता है मैं सिर्फ सी फूड खाता हूँ. तो क्या करेगा? मैं तो बोलूंगा भाई अपने घर रह के खाओ. मैं बोलूंगा अपने घर रह के खाओ. क्योंकि मैं नहीं खिला सकता सबको चार को. There is no answer to this. The answer is bloody go away. I cannot make food for everybody. So the question is, who do you like the most? Who would you make the food for? ठीक है, सिंपल है. अगर अभी मैं तेरे को बोलता हूँ सब लोग आ रहे हैं और सब लोग पैसा देने वाले हैं, मैं सबसे जो पैसा देने वाला है उसके लिए बनाऊंगा. समझ रहा है? बट you know what? One of the more important things is, it is very important that you learn that you don't always make games for yourself. You make it for people. That is a very important thing that you need to understand about the industry. तो ऐसे भी गेम्स बनाएगा जो तेरे को बिल्कुल नहीं बनाने. ठीक है, जो तेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ऐसे भी गेम्स बनाएगा बिकॉज जॉब वैसा रिक्वायर करता है. तो तू जॉब पे गया, ईए ने तेरे को ऐसे टाइटल पे डाल दिया जहाँ पे तेरे को मजा ही नहीं आ रहा है, तो क्या नहीं जाएगा? नहीं मैं तो इसी गेम पे काम करूँगा जो मुझे पसंद है. ऐसा नहीं होता. तो फुटबॉल प्लेयर रहेगा, तेरे को बास्केटबॉल पे डाल तो नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा, बास्केटबॉल सीखना पड़ेगा. भले तेरे को स्पोर्ट नहीं पसंद है, यू विल हैव टू गो अहेड एंड लाइक लर्न दैट स्पोर्ट एंड देन बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द पीपल लव इट, how to make it fun for them, even if you don't enjoy it. That's the hallmark of a good designer, to be able to step into other people's shoes, understand the experience and design for that experience. तो क्वेश्चन ये जो है ये ज़्यादा डिपेंड करता है तेरे ज़रूरत पे. अगर तू खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए गेम बना रहा है तो एक्सपेक्ट मत करके वो वायरल होएगा. अगर तू वायरलिटी के लिए गेम बना रहा है तो एक्सपेक्ट मत करके तुझे बहुत मजा आएगा. अगर तू वायरलिटी के लिए बना रहा है तो सबसे बड़े ऑडियंस, सबसे बड़े कंज्यूमर, सबसे बड़े स्पेंडर्स के लिए बना, एंड सबसे ज़्यादा रिटेन होने वाले ऑडियंस के लिए बना, सबसे अटैच होने वाले ऑडियंस के लिए बना, सबसे इमोशनल ऑडियंस के लिए बना. So then this would go as per your research. Okay, it would not really go based on. This is also why one very important thing I want to talk about is ये जो हम चीज़ पढ़ते हैं ना, टैक्सोनॉमी, 4 टाइप ऑफ प्लेयर, ये बहुत डेंजरस स्टडी है क्योंकि ये लॉजिक को किल करता है एंड ये एक चीज़ तुमको फॉलोअर बनाता है. तुम्हें ऑनलाइन जो टूल्स तुम पढ़ रहे हो, MDA, टैक्सोनॉमी, SDT, यार तुम्हें इसके हिसाब से नहीं चलना है. अगर तुम इसके हिसाब से चलोगे तो तुम खाली गधे बन के खाली एक बकरी ऐसे फॉलो कर रहे हो, एंड दैट किल्स योर क्रिएटिविटी, दैट किल्स योर लॉजिकल क्वेश्चनिंग, that kills your logical reasoning, your analysis, and your ability to question things. What you need to develop is your base logic and understand where this came from because it has so many exceptions. So many exceptions. तूने मुझे 2 और पूछा था, हेक्सा पूछा था, एक और पूछा था. यार बहुत exceptions है. मैं तेरे को बताता हूँ. 30 मिनट दे, तू खुद बना देगा एक. तू खुद को 30 मिनट दे, तू खुद एक नया बना देगा. इससे भी बेटर वाला. तू 12 बना देगा. 12 टाइप के प्लेयर बना देगा भाई. क्योंकि तेरे दिमाग के अंदर है, तू भी एंजॉय करता है चीज़ें. तू अगर खाली सोचते बैठा ना मेरे को क्यों मज़ा आता है, अच्छा इसलिए मज़ा आता है, क्या मज़ा आता है, तो खाली एनालाइज करने बैठ, तेरे दिमाग से चीज़ें निकलेंगे. दैट्स व्हाई आई से ऑफन टाइम्स गेम डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. पीपल ओवर कॉम्प्लिकेट स्टफ बिकॉज दे स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ दे अराइव दैट. तो अगर किसी और का आउटपुट लगाएगा विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ दे अराइव दैट, टू डिराइव ही नहीं कर पा रहे, तो तुझे सेंस नहीं बना पाएगा, तो बेस्ट उसको अप्लाई भी नहीं कर पाएगा, तुझे पता भी नहीं उसको अप्लाई कहाँ करना है. दैट इज द रीजन फॉर कंफ्यूजन. ओ एक और क्वेश्चन है, लेट्स गो. अच्छा और 2-3 है, लेट्स गो इनटू दोस. कैसे करूँ मैं इसको जूम इन एंड प्रेजेंट? ठीक है, एक सेकंड. शुड वी ओके शुड वी गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू एक्टर्स एंड क्रिएटर्स? देख अगेन हाँ बोल टाइटल, टेक्सोनॉमी, उसके अंदर तो है एक्टर एंड क्रिएटर्स, लाइक उनको भी सेम वैल्यू देनी चाहिए प्लेयर और उन सब के टाइप के हिसाब से. व्हाट डू यू मीन एक्टर्स एंड क्रिएटर्स? एक बार एक्सप्लेन कर, मैं मुझे याद आएगा बिकॉज़ मैंने नीचे डिटेल्स में डाला. एक्टर्स जो रोल प्लेयर्स एंड क्रिएटर जो बिल्डर, जिनको बिल्ड करना पसंद है गेम में.
Doesn't this come into the 4 types itself? So killers, socializers, explorers, हाँ ठीक है, can't socialize वो 4 fair. बाकी लोगों ने अच्छा तो बोल रहा है कि ये दो अगेन देख द क्वेश्चन इज कि रूफ रन कैसे टाइप के प्लेयर के लिए है, बिल्डर के लिए तो नहीं है, इसमें कोई डिजाइनिंग क्रिएटिंग है ही नहीं, इसमें कोई सैंडबॉक्स चीज है ही नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है बिल्डर के लिए। रोल प्लेयर्स क्या रोल प्ले करेगा, नहीं बिल्कुल उसके लिए भी नहीं है। इट्स मोर फॉर समबडी हु इज एन अचीवर और किलर, राइट, अचीवर्स एंड किलर्स के लिए है बस। तो वो मेन टाइप के भी सब पार्ट्स है सर, तो हाँ जो मेन चारों भी है इसके लाइक सब पार्ट्स है एक्टर्स ऑफ। हाँ मैं तो वही बोलूँगा कि ये ज्यादा सब पार्ट्स के अंदर आएंगे। आई मीन लाइक आई सेड, तू कितना बनाते रहेगा, तू बहुत बना सकता है, तू 20 टाइप के प्लेयर्स बना सकता है। इसलिए तू ये सोच कि तेरा जो प्लेयर खेलना है, प्लेयर प्रोफाइलिंग कर, ये सब मराए, तेरा प्लेयर का रिएक्शन टाइम क्या रहेगा, तेरे टाइप प्लेयर का अटेंशन स्पैन क्या रहेगा, उस हिसाब से डिजाइन कर, तो फेल नहीं होएगा। अगर तू इस हिसाब से किसको टारगेट करना है पहले तो तू मेरे को बता, एक बिल्डर का रिएक्शन टाइम करेगा, एक रोल प्लेयर का रिएक्शन टाइम करेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये मेरे को अगर बता पाता है कि तेरे, हाँ तो नॉट नेसेसरीली, बट अगर तू मेरे को बता पा रहा है कि तेरे जो जॉनर में जो एक्शन प्लेयर्स है उनका रिएक्शन टाइम क्या है, ये तू कैसे पता लगेगा कि तेरे जॉनर के एक्शन प्लेयर्स का एक्शन टाइम कैसा है, तू कैसे पता करेगा? सिंपल बात हूँ, सिंपल बात हूँ, सबवे सफर खोल, सबवे सफर में लेन चेंज करने की कितनी टाइम जरूरत पड़ती है कैलकुलेट कर। इट्स अ सक्सेसफुल गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ सक्सेसफुल गेम, इन दैट सक्सेसफुल गेम चेक द एक्शंस पर सेकंड, मतलब कितने बार स्वाइप करना पड़ता है एक सेकंड में, एंड उसको चेक कर पूरे लेवल के प्रोग्रेशन में कि अर्ली लेवल में कितने बार स्वाइप करना पड़ता है, एंड लेटर लेवल में कितना, एज यू प्रोग्रेस स्वाइप्स कितने इंक्रीज होते हैं, उसके हिसाब से रिएक्शन टाइम निकाल सकते हो। तू तेरे को पता चल जाएगा एक सक्सेसफुल गेम में रिएक्शन टाइम क्या चल रहा है, समझा? मार्केट स्टडी कर ले, मार्केट स्टडी कर ले, गूगल पे सर्च कर ले कि व्हाट इज द एवरेज रिएक्शन टाइम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस एज ग्रुप, ऑफ दिस जेंडर, ऑफ दिस रीजन, of this demography, of this type of player types, whatever you can niche, narrow it down to, find that and then test both कि तेरा मार्केट स्टडी एंड तेरा जो खुद का एनालिसिस है वो मैच हो रहा है कि नहीं, देन तेरे गेम में अप्लाई कर और फिर प्ले टेस्ट कर लोगों से। ये पूरा प्रोसेस करके तेरे को समझेगा कि वो सही चल रहा है कि नहीं। ये गए एक्टर भाड़ में भाई, क्या पता एक बिल्डर ही अपना हाई रिएक्शन टाइम वाला बिल्डर आ गया तेरे गेम में खेलने के लिए, बिकॉज वो किलर भी है या अचीवर भी है, तुझे क्या पता। तो इसके लिए इस पे मत चिपक, ये बहुत गंदा मिसगाइड कर भी सकता है देखो। दैट्स व्हाई बुकिश नॉलेज इज गुड इन बुक्स, इट्स गुड टू गिव यू सम काइंड ऑफ लाइक vocabulary टू communicate your concepts and ideas. They're not the rule, they have become a norm, the norm is not the rule, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है, इज बैटल taxonomy only for multiplayer, what about single player? No, it's also for single player entirely. There are so many single player games made just for killers. So many single player games, like starting with multiplayer है कि नहीं, but I think it's more of a single player experience. प्लेयर Mostly. हाँ अभी आने से पहले यहाँ पे तो उसके अंदर एक मेंशन था कि ये मल्टीप्लेयर के लिए है, क्योंकि इसके अंदर चार चीजें होनी चाहिए गेम में, तो सिंगल प्लेयर्स के लिए अलाउ नहीं करता सिंगल में। ये जिसने भी लिखा है वो ये कहाँ पे है, कौन सा पब्लिकेशन है, बिकॉज ये पक्का डेफिनेटली बोगस है। वेबसाइट पे देख, अगर मैं तेरे को स्ट्रेट अप बोलता हूँ, अगर गेम developer.com पे तो बोगस है, मतलब gamedeveloper.com पे भी है तो भी बोगस है, इवन दो इट्स अ वेरी रेप्यूटेड साइट। द थिंग अबाउट दिस इज दैट इवन लाइक there are a lot of writers, there are a lot of websites, they might not write the best stuff, and you need to think about whether this applies to your game and how it applies, how you take it and how you apply it. Because क्या सिग्निफाई करता है टैक्सोनॉमी, ये इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, राइट। देख, अगर मैं बोलता कोई चीज़, कोई प्लेयर किलर है, तो मेरे को ये समझता है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एक्सपीरियंस किस चीज़ में रहा है, और उसका कैपेबिलिटी कैसा रहेगा किलिंग का, ठीक है। ये चीज़ सिंगल प्लेयर में क्यों अप्लाई नहीं होगा? एब्सोल्युटली होगा। अगर एक प्लेयर का कैपेबिलिटी बहुत हाई है किलर का, तो मैं सिंगल प्लेयर गेम में अगर उसको लो कैपेबिलिटी का तो वो बोर हो जाएगा। तो डिफरेंट, बट एक्सप्लोरर का मे बी कैपेबिलिटी हाई नहीं रहेगा, उसको मजा आएगा। तो मैं डिफिकल्टी लेवल किसके हिसाब से सेट करूंगा? ये डेफिनेटली सिंगल प्लेयर में अप्लाई होता है। तो समझ आए लॉजिकली, तू मुझे बता व्हाट यू फील। तो लाइक वो सकते हैं, बट हम एक ही गेम में सारे डाल सकते सिंगल प्लेयर, बट सारे डालने की जरूरत ही नहीं है ना, सारे डालने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं, हाँ सोशलाइजर्स नहीं आएंगे, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन सोशलाइज कंप्लीटली विद एनपीसीज एज वेल। इफ यू गिव मी रियली गुड एनपीसीज, आई वुड लव टू सोशलाइज। एन एग्जांपल इज स्काईरिम।
Skyrim is a game where people feel so nicely, socially belonged because it has so much interaction with NPCs. The NPC interactions are so rich that you feel like you're living in a completely, living, breathing world. Even Shadow of Mordor, where you have the Nemesis system and stuff. So social, अगर तो belonging की बात करता है तो जरूरी नहीं कि वो मल्टीप्लेयर से आए. इनफैक्ट बहुत सारे सोशल मल्टीप्लेयर गेम्स में सोशल बिलोंगिंग खराब है कंपेयर टू सिंगल प्लेयर गेम, बिकॉज टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा एलिटिज्म है, बहुत ज़्यादा पे टू विन एंड वेल्स को वर्शिपिंग है. तो नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मल्टीप्लेयर को अप्लाई नहीं करता है. इनफैक्ट सिंगल प्लेयर पे तो चारों के चारों डेफिनेटली नहीं कर सकता है. एग्जाम्पल स्काइरिम खत्म. स्काइरिम में सबके सब है. आई वांट टू अचीव डिफरेंट अचीवमेंट्स, आई वांट टू एक्सप्लोर द एंटायर वर्ल्ड, आई वांट टू किल अ लॉट ऑफ स्टफ एंड आई वांट टू सोशलाइज विद एवरी एनपीसी. सिंपल एग्जाम्पल इज स्काइरिम और विचर, both single player games. इस सबके कल्चर. In fact, I can go for like multiple single player games which actually do this much better than multiplayer games. अब तुम्हें बता प्रवीण, what do you feel on this? भाई There you go. मतलब because हम ऐसे एग्जाम्पल्स को जनरली कंसिडर नहीं करते हैं. ये भी मेरे दिमाग में चमका तो अरे भाई सिंगल प्लेयर पे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं. डेफिनेटली जाओ नेक्स्ट पे. ओके, is Hexad as important to learn? It's a hybrid of SDT and Bartle. No, I never learned Hexad. It was the first time that I was hearing of it. I wouldn't say it's very important. Again, 90% of what you apply in design should come from your brain. All of these other things are good for like communication. If you think this is something that's widely spoken about in your industry at the time, if it's trending, if it's used for making communication easy, then vocabulary के लिए अच्छा है. But तेरे designs अच्छे बनाने के लिए तुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. Because तेरे designs अच्छे बनाने के लिए तुझे एनालिसिस, एक इंट्यूशन को कन्वर्ट करना लॉजिक में, बेसिकली अपने सबको इंट्यूशन क्या है, तेरे सबकॉन्शियस में एक फीलिंग है, उसको जब तू लॉजिक में कन्वर्ट करके लेके आ सकता है, प्रूव कर सकता है एनालिसिस से एंड डेटा से, यू आर डूइंग अ गुड इनफ जॉब एट दैट पॉइंट. सो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क टू मेक योर गेम्स. दैट्स लाइक इट डजंट ऑलवेज अप्लाई. फ्रेमवर्क्स ऑफन कैन ऑल्सो ब्रेक योर गेम. यू माइट अप्लाई द रॉन्ग फ्रेमवर्क टू द रॉन्ग गेम एंड वंडर कि क्यों नहीं चल रहा है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लेयर प्रोफाइलिंग बेस्ट चीज़ है. You're sure about your player. You're sure what they're looking for. You're sure about the promises that you make. You're sure about their expectation, and you're sure about what they can afford to give you. How much time they can give you. How many sessions they can give you. How long they might be able to play. How much they might be able to pay. तो player profiling बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ चलेगा as compared to these frameworks. ठीक है, समझा देखो. Perfect. These frameworks are just to make sure that you are like taking care of everything to like give the player what they want. But if you're very attentive of the player, if you're very observant, that does the job. How do you design a game for all types of players? Why would you want to? The core important. This is like designing from anxiety. कि यार FOMO है तो fear of missing out on players. मेरे को ये player भी चाहिए, वो player चाहिए, मेरे को ये सब लोग मेरा game worship करें. But that's not good because that's a simple question. तू मेरे को पूछ रहा है मैं हर नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, एगिटेरियन, जो खाली सी फूड खाता है, इन सब के लिए खाना कैसे बनाओ? बना, ज़्यादा टाइम डाल, ज़्यादा लोग को हायर कर, बहुत सारा पैसा डाल, बना गेम, GTA 6 बना. फिर पता है क्या होएगा? शायद कोई वेजिटेरियन नहीं आएगा बिकॉज उसको मच्छी का वास नहीं चाहिए, उसको अंडे का वास नहीं चाहिए, उसको चिकन का वास नहीं चाहिए. ये एग्जाम्पल भी बताओ. इफ आई जस्ट वॉन्ट अ कार रेसिंग गेम एंड रेसिंग इज ब्यूटीफुल, ड्राइविंग इज सो गुड इन GTA 6, पर मेरे को नहीं चाहिए कोई मेरे को पब्लिक लॉबी में मिसाइल्स उड़ाए. मेरे को नहीं चाहिए कि मैं बकवास चैट देखते जाऊँ आजू बाजू. मेरे को नहीं चाहिए कि मेरा स्ट्रीट रैंडम कोई क्राउड करे. मेरे को नहीं चाहिए एक्स्ट्रा टाइम लोडिंग इन द UI. क्यों? क्योंकि ये सब आएगा. वाई? बिकॉज बाकी लोग को भी तूने केटर किया हुआ है. तो तू क्लीन एक्सपीरियंस 4 से या मेरे को 80 से दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा. इसीलिए मुझे वो बैंगन का भरता चाहिए ही नहीं. सिंपल. लाइक सेम एज रियल लाइफ. अगर तू सबको प्लीज करने जाएगा तो कोई प्लीज नहीं होगा कहीं. जो सुनाई दिया उसने क्या बोला? हाँ, सेम चीज. You can't please everybody, so don't go for that. Simple as that. ठीक है. And finally, let's go to the last slide. Thank you. Okay, thank you very much. तू बता, तेरे को कोई questions आए around this? Did I cover everything? Sorted. और कोई questions पूछे देखो कुछ भी? I think you take the yes question is right. Okay. Sorted. चलेगा. Great. तो मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ. This was I think a pretty good session. अंकित तेरे को कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है? Anything at all? What do you think is it? No. ये क्या हो गया? एक सेकंड. Sorted. चलेगा प्रवीण. Thank you so much for bringing this up. मैं अभी यहाँ पे वीडियो रैप अप करता हूँ. I'll give some closing notes after that and then मैं इसको एडिट करके तेरे पास भेजता हूँ, फिर अपन इसको अपलोड करते हैं. ठीक है? ये जो टॉक्सी ना,
different type of gamers. ये वाली मेरे को gamedesignskills.com पे मिला था. अच्छा, हाँ यार, देख ऐसे वेबसाइट से बहुत है। और देखो बता ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत सी चीज़ पब्लिश करते हैं। बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिनको मैं डायरेक्ट क्रेडिबिलिटी नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ टाइटल देके क्रेडिबिलिटी नहीं देता हूँ। पता है मेरे को जो चीज़ लॉजिकल लगती है मैं वो चीज़ फॉलो करता हूँ। तो आई डोंट इवन ट्रस्ट माई ओन लॉजिक एट टाइम्स। फैक्ट्स एक साथ थोड़ा एको आया शायद से। हाँ तूने अच्छा बढ़िया। तो लाइक सिर्फ लॉजिक से चल, सिर्फ एनालिसिस से चल। एंड जस्ट बिकॉज किसी ने कोई वेबसाइट पर डाला है या कोई बहुत सीनियर इंसान बोल रहा है, सोच फिर भी उसको डायरेक्टली वर्ड वैल्यू के लिए मत ले। डोंट टेक वर्ड एज एवरीवन's gospel. Even if I'm saying something, criticize it, try to apply your own logic to it, and only if it makes full sense to you, after like asking it, processing it 50 times, then basically apply it to your game. That's the process of game design. The more you do it, the better you get at it. It's like sit-ups or like doing any kind of exercise. So yeah. ठीक है रोशन उसके ऊपर जो आपने जितने भी टॉपिक्स बोले थे ना, हाँ पूरे एक एक करके सबका अलग अलग बनाया मैंने। ओके, इसके अंदर और भी न्यू न्यू टॉपिक्स में सीखते जा रहे हो, तो उसके साथ साथ और भी नई चीजें ऐड हो रही है। तो मैं आपको पूछूंगा बाद में। डन। अरे विल डू मोर ऑफ दिस सेशंस। अगर ये वीडियो सही जाता है, अगर लोगों को हेल्प करता है, तो डेफिनेटली और सेशंस करते हैं। सही रहेगा ये। तो कैसे लगा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सेशन कैसे लगा? बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। सॉर्टेड, जेन्युइनली सही, सच्चे है। सॉर्ट दैट्स गुड, आई एम हैप्पी। जो आर्टिस्ट वाली चीज उसमें लाइक पहले ही मैंने कंप्लेंट हो रही थी मेरे से उनको कि तुम रेफरेंस इमेज मांग रहे हो बार बार, ऐसा ऐसा। मैंने बीच में मतलब बाद में स्टॉप कर गया था, तो उसके बाद उनने खुद से बनाना स्टार्ट किया। तो फिर जाके आर्ट्स का थोड़ा सा अच्छा निकल रहा था, जो अभी मैंने दिखाया आपको। हाँ वो सब उनने, अरे काफी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। आर्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ आर्ट तो मैं शॉक हो गया, मैंने ये नहीं देखा था। हाँ मैंने बीच में नहीं देखा तुम लोग का, बट अभी जब देखा तो इट वाज लाइक डैम, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो आई एम एक्साइटेड टू सी दिस गेम। देखते हैं इसको, बनेगा ये। बस आज अच्छा तो लग रहा है। अभी दिक्कत है राउंड टू डेवलपमेंट वाले टाइम पे करेंगे। ठीक है, डेवलपर्स आलसी हो, आप देख नहीं दे रहे बैकअप। राउंड टू में करेंगे इसको। चलिएगा, ठीक है। ऑसम प्रवीण, ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट, बाय 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 बाय। और बता अंकित, क्लोजिंग नोट्स क्या लगा तेरे को? कुछ मिस क्या बनने को बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, कुछ मिस तो नहीं किया आज, बिकॉज लाइक वो पीट चार्ट का जो एपीएम का था, लाइक एक्शन पर सेकेंड्स मिनट्स, उसका लाइक हर एक जॉनर का अलग अलग रहता है, राइट? ह्यूमन रिएक्शन टाइम तो एक लिमिटेड है, ऐसे रेस्ट कुछ भी कर ले। हाँ, सो क्या ही कर लेगा उसको, दैट्स ट्रू। रिएक्शन इवन फॉर अ मसल, डिफरेंट मसल्स हैव डिफरेंट रिएक्शंस। लाइक एक क्लिक को वर्सेस एक ड्रम स्लाइस को, लाइक अपन बीट से इट्स गोना टेक अ डिफरेंट टाइम, बिकॉज़ मल्टीपल मसल्स मूव करने हैं, एक चीज पे टैप करना है। अगर मेरा सोर्स स्लाइस है, सोर्स स्लाइस से मैं 300 एमएस पे देने में कैसे खत्म हो जाएगा? तो इट्स लाइक दैट। तो या वी नीड टू कंसीडर लाइक व्हाट इज रिएक्शन एंड कितना उसको पहले तो विजुअली प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन, एंड कितना टाइम। तो रिएक्शन और रिफ्लेक्स पर डिफरेंस है। रिएक्शन में वो टाइम ले रहा है प्रोसेस करने के लिए, प्लस लाइक चेस में रिएक्शन कितना स्लो होता है। आई मीन ग्रैंड मास्टर्स का नहीं, बट एक एवरेज प्लेयर रिएक्शन भाई आराम से 5 सेकंड लेगा वो रिएक्ट करने को वापस, ऐसा सिचुएशन के पास। तो वैसा तो राइट, जनरल प्रॉब्लम डिफर करेगा, बट एक मैक्स लिमिट, इवन इफ अ चेस मास्टर नो हाउ फास्ट लाइक एग्जैक्ट मूव नेक्स्ट क्या करना है, इधर से हाथ लेके उसके पेस को आगे करके फिर वो ब्लॉक दबाना, इसमें उसको एक लिमिटेड टाइम तो लगने वाला है। नहीं हाँ, तो उसमें अगर तो और डिमांड करेगा तो वो खुद भी आंसर जाके भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा है वो। तो क्या सीलिंग्स है और क्वेश्चंस? और आदित्य कैमियो खुद इस पे काम कर रहा है, बढ़िया। वो फिलहाल दूसरा एडिट कर रहा है वीडियो, ठीक है, चलेगा। तो विल रैप इट अप हियर। ऑलराइट, only thing I'll say is like if you guys have comments, if you guys like want to ask some stuff, I want to do a lot more of these so that a lot of things that go unanswered with a lot of blog posts and stuff, like in your sources of design where you study design from, I want to be able to like help you guys explore that, while I might get to learn a lot. So even if you need to like break down certain games to understand new things, कर लेंगे वो चीज़।
तो अगर कोई क्वेश्चन है तो डाल दो कमेंट्स पे और शेयर कर लो यार किसी जिसको हेल्प हो सकता है. ठीक है, थैंक यू, बाय.